Assalamu alaikum everyone. A warm welcome to today's episode. Thank you so much for joining in, and I'm really glad to have you all among us. And we are going to start our opening series of Opening Mind by Teen Therapy Wellness. We have Miss Sama with us. She is our host for today's episode. Over to you, Sama. Good evening and assalamu alaikum. A very warm welcome to everyone. I'm Sama Nadeem, and I'm absolutely delighted to be your host for today's session, Opening Minds Mental Health Awareness Series, brought to you by Teen Therapy Wellness and sponsored by Wellbeing Hub, Amna Ansari, and We Protect. Team Therapy Wellness, founded in 2019 by clinical psychologist Afra Arshid. She's here with us. And she is a mental health, Teen Therapy Wellness is a mental health platform committed to supporting the emotional and psychological well-being of adolescents and young adults through therapy awareness, campaigns, and community engagement. This platform has helped countless individuals navigate anxiety, trauma, grief, and identity challenges. Over the years, Teen Therapy Wellness has delivered impactful workshops in schools, universities, and corporate sectors, aiming to break the stigma around mental health. To equip individuals with tools for emotional resilience. Let's meet our founder and CEO of Teen Therapy Wellness, Ms. Afra Arshid. She's a clinical psychologist, a counseling psychologist with over 7 years of experience. She specializes in trauma-informed therapy, emotional regulation, CBT, REBT, and psychoanalysis. Afra has conducted hundreds of one-on-one sessions with teens and adults, young adults, and her commitment to community healing is evident in many platforms. She has trained, taught, and collaborated. Now I'll be introducing our today's guest speaker. Miss Sama, slides please change kar de. I'm sharing my slides. Let me do it again. Is it visible now? Yes, I'm it so is. sorry, I guess it was a glitch. I'll be introducing my speaker guest, Ms. Kainat Ikram. We are honored to welcome Ms. Kainat Ikram to a Teen Therapy Wellness Opening Mind, a mental health awareness series with an advanced diploma in clinical psychology and a strong portfolio of international certifications, including Neuro-Linguistic Program, NLP, hypnosis, from the American Board of Cognitive Behavioral Therapy, CBT. Ms. Kainat brings a diverse and powerful therapeutic approach to mental wellness. Her commitment to mental health and her expertise in navigating emotional and generation challenges make her an invaluable voice in our session titled Between Two Worlds, Navigating Generational Trauma. Over to you, Ms. Kainat Ikram. So, Assalamu alaikum, everyone. Walaikum assalam. Walaikum assalam. Thank you so much, Team Therapy Wellness and Ms. Afra Arshad for onboarding me. I'm just going to share my slides. Okay, so I'm Kainat Ikram, and I'm a clinical psychologist and mindset coach.
I've been practicing from the last 2.5 years by physical and online. So today I'm very excited to be here with all of you with a very interesting and sensitive topic of generational trauma. Today's session is all about healing, awareness, and empowerment. So I welcome you all, whether all experiences of all of us are different, but all questions are very warm. I'm welcoming everyone. So I am starting to present my topic, that is between the word navigating generational trauma. Like जिस तरह हम इस वर्ड को सुनते हैं, अंडरस्टैंड करते हैं, हमारे सामने एक टॉपिक है नेविगेटिंग जनरेशनल ट्रॉमा. अब आप सब लोग थोड़ा सा मुझे इसके बारे में बताएं. मेरी स्लाइड सबको शो हो रही है? Yes, it's visible. Yes, ma'am. Okay. So first of all, I'm going to discuss what is trauma. You can also write in a chat box that what is trauma. I'm also explaining to you. So ट्रॉमा एक इंटेंस रिस्पॉन्स है, हमारी बॉडी का एक इंटेंस रिस्पॉन्स है. ट्रॉमा अगर हम लोग कहते हैं ना कि मतलब कोई इंसिडेंट हो गया, कोई इस तरह का इंसिडेंट है कि किसी लव्ड वन की डेथ हो गई, कोई कार एक्सीडेंट हो गया, या किसी की डाइवोर्स हो गई, इमोशनल मतलब किसी का ब्रेकअप हो गया, ये डिफरेंट ट्रॉमास की ना ये एग्जांपल्स हैं. लेकिन ट्रॉमा ये नहीं है कि व्हाट हैपेंड टू यू, आपके साथ क्या हुआ. ट्रॉमा एक्चुअली ये है कि व्हाट हैपेंड इनसाइड यू एज अ रिजल्ट ऑफ दैट. किसी इंसिडेंट के रिजल्ट में आपकी बॉडी में उसका क्या रिएक्शन आया, आपने उसको किस तरह से लिया. इट्स नॉट जस्ट लाइक व्हाट हैपेंड टू यू. और ट्रॉमा जो है ना हमारी एबिलिटी को डिस्ट्रैक्ट कर देता है. हमें ट्रॉमा के रिएक्शन में ना बहुत ज्यादा फिजिकल रिएक्शंस आते हैं. लाइक फॉर एग्जांपल हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम एक्टिव हो जाता है इसके रिस्पॉन्स में. हमारी ब्रीदिंग जो है वो रैपिड ब्रीदिंग हो जाती है, हार्ट पैल्पिटेशंस हमें शुरू हो जाती हैं, मसल्स में स्ट्रेच आने लग जाता है, एंजाइटी के बहुत सारे सिम्टम्स आने लग जाते हैं. और ट्रॉमा के एक इतना इंटेंस इवेंट, कोई ऐसा इंटेंस इवेंट जो पर्सन की लाइफ की सेफ्टी को डिस्टर्ब कर दे, उसको बिल्कुल पावरलेस फील कराए कि ये पर्सन बिल्कुल पावरलेस हो गया, मेरे पास तो कैपेबिलिटी ही नहीं है कि मैं इस ट्रॉमा को हैंडल कर सकूं या इसके बाद में किसी स्ट्रेसर को देख सकूं. बिल्कुल ही पावरलेस हो जाता है कि मतलब कोई निग्लेक्शन आ गया उसको फैमिली में, कोई अब्यूजिव उसके साथ कुछ हो गया, मतलब कोई भी फिजिकल अब्यूज हो सकता है या इमोशनल अब्यूज हो सकता है. अब्यूज की भी बहुत सारे टाइप्स हैं. सो ट्रॉमा इटसेल्फ ना, मतलब ट्रॉमा की इतनी सारी एग्जांपल्स हैं कि हर किसी के लिए ट्रॉमा की जो एग्जांपल है वो डिफरेंट है. हर कोई जो है ना डिफरेंटली ट्रॉमा को परसीव करता है और उसको लेके चलता है अपनी लाइफ में. अब ऐसा भी नहीं होता कि जो एक ट्रॉमा एक पर्सन के लिए सेम है. लाइक एक इंसिडेंट एक पर्सन की लाइफ में हुआ, दूसरा पर्सन भी उसको एज इट इज लेगा, नेवर. जो सेकंड पर्सन है उसका पर्सपेक्टिव उस इंसिडेंट को लेकर डिफरेंट होगा. हो सकता है वो उसकी इतनी एबिलिटी हो कि वो ट्रॉमा को डिफरेंटली कोप करे, हैंडल करे, मैनेज करे, लेकिन हर किसी की कोपिंग एबिलिटी डिफरेंट होती है. सो ट्रॉमा भी हर किसी के लिए डिफरेंट होता है. So what's one word? मिस कायनात, आप प्लीज चैट बॉक्स पे भी मैसेज पढ़े, काफी लोगों ने रिप्लाई किया हुआ है. जी श्योर मैं चाहता हूँ. ट्रॉमा ऐसे ग्रीफ को कहते हैं जिसके इफेक्ट में इंसान की रूटीन लाइफ पर पड़ता है. और ठीक है, ट्रिगर्ड बाय एनी स्टिमुलस व्हिच रिप्रेजेंट एनी पास्ट एक्सपीरियंसेस यू वेंट थ्रू. नेग्लेक्ट, अब्यूज, नीड्स का पूरा ना होना. ठीक है, कोई ऐसी चीज होती है जो बहुत ज्यादा पेन, फियर या स्ट्रेस देती है. हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है कि हमारी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है जिसके बाद हमें बिल्कुल पावरलेस फील होता है. उसके बाद मतलब हमारी एबिलिटी नहीं रहती कि हम उस चीज को किस तरह से हैंडल करें, हम उसको किस तरह से कोप करें. हमारे पास वो कोपिंग एबिलिटी नहीं रहती. हमारे जो डेली लाइफ स्ट्रेसर्स है ना, लाइक फॉर एग्जाम्पल किसी को एग्जाम का स्ट्रेस आ गया, किसी को प्रेजेंटेशन का स्ट्रेस आ गया, कोई भी छोटे मोटे लाइफ स्ट्रेसर्स हैं, वो एक शॉर्ट टर्म एंजाइटी के फैक्टर में आते हैं जो कि हमारी लाइफ के लिए कंपल्सरी होते हैं. लेकिन
जो एक प्रोलॉन्ग लेके चलता है, कोई इंसिडेंट ऐसा हो गया जो आपको बाद में प्रोलॉन्ग से प्रोलॉन्ग होता जा रहा है और आप उससे निकल ही नहीं पा रहे हैं, तो वो फिर ट्रॉमा की शक्ल इख्तियार कर लेता है। उसके लिए फिर आपको किसी मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की हेल्प लेनी होती है उससे निकलने के लिए, या किसी केयर गिवर की, या किसी से बात करने की आपको जरूरत होती है, क्योंकि हम लोग इतने ज्यादा क्रॉनिक स्ट्रेस में चले जाते हैं कि फिर अनटिल अनलेस हम जब तक किसी से डिस्कस नहीं करते ना, हम उससे निकल नहीं पाते, हम उसमें धंसते चले जाते हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी जो है वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करती, इस चीज के बारे में बात ही नहीं करती। सो इस चीज को नॉर्मलाइज करना चाहिए कि मेंटल हेल्थ अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है और इस पे बात करना कोई बुरी बात नहीं है। हम इस पे बात करके बहुत सारी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जनरेशनल ट्रॉमा, आज हम इसी वजह से इस टॉपिक को डिस्कस करने लगे हैं, क्योंकि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं वो इस चीज को समझते ही नहीं थे, इस चीज को अभी तक वो अंडरस्टैंड नहीं करते, वो उस पर बात करने को मायूब महसूस करते हैं। उन्हें लगता है कि शायद हम बात करेंगे तो सोसाइटी हमें पता नहीं लेबलाइज कर देगी, टैग लगा देगी, जबकि ऐसा नहीं है। इतनी ज्यादा अवेयरनेस आ गई भी है इस बारे में, तो हमने अब इस चीज को, इस साइकिल को आज ब्रेक करना है कि हम किस तरह से जनरेशनल ट्रॉमा को हम स्टॉप कर सकते हैं और हम किस तरह से अपनी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को इस ट्रॉमा से बचा सकते हैं जिस ट्रॉमा से हम लोग गुजरे हैं या हमसे पहले के लोग गुजरे हैं। सो हम आज उस चीज को डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। So, my next question to you: what's one word you associate with the idea of generational trauma? Kindly write in chat box. So, अगर मैं जनरेशनल ट्रॉमा को डिफाइन करूं तो जनरेशनल ट्रॉमा एक ऐसा साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस है, या ऐसी कंडीशन है, या ऐसा इंसिडेंट है, ऐसा इवेंट हो जाता है हमारी लाइफ में जो हमारी जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन हो। हमारी जनरेशन में मतलब एक इंसिडेंट एक जनरेशन के साथ हुआ है, लाइक किसी के लव्ड वन की डेथ हो गई है, या किसी के इस तरह के नेगेटिव जो है ना पैटर्न्स हैं, किसी के लाइफ के नेगेटिव पैटर्न्स हैं, वो पैटर्न्स चलते आ रहे हैं एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, दूसरी जनरेशन से तीसरी जनरेशन में। क्यों? क्योंकि कोई भी जनरेशन उस साइकिल को ब्रेक नहीं कर रहे। वो मैम मैं कुछ कहना चाहूंगी यहाँ पर, बोल सकती हूँ? जी श्योर, बोले। मैम इसको मैं इस तरह डिफाइन करना चाहूंगी कि जैसे आपने बताया जनरेशन टू जनरेशन चलती है ये सब चीजें, ट्रोमा। अब लाइक एक मैं मैरिज की एग्जांपल लूंगी। जैसे हमारे बड़ों ने खानदान के अंदर शादी की, देन उनके आगे बच्चों को कहा जाता है, प्रेशर दिया जाता है कि आपने बाहर शादी नहीं करनी, फिर उनके आगे बच्चों को ये बात कही जाती है। तो ये भी ट्रोमा की ही एग्जाम्पल होगी कि उन पर दबाव डाला जाता है कि आप इस चीज से बाहर नहीं जा सकते। लेकिन अगर कोई बाहर जाने की कोशिश करे या अगर उस चीज को अंडरस्टैंड करे कि ये हमारे ऊपर प्रेशर है, तो फिर वही बात उनको टॉर्चर किया जाता है मेंटली तौर पर कि नहीं नहीं दिस इज रॉन्ग। तो ये भी एक तरह का जनरेशनल ट्रोमा है। जी जी बिल्कुल। योर गुड नेम प्लीज। एक्चुअली मुझे नजर नहीं आता। अच्छा जी, अच्छा आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, ये भी जनरेशनल ट्रॉमा की एक टाइप है, क्योंकि हमारे बड़ों ने ना कुछ बिलीफ सेट कर लिए होते हैं। इसको हम इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं कि एक बिलीफ है जो उन्होंने बना लिया हुआ है, ये उनका अपना ही बनाया हुआ बिलीफ है कि जिस तरह आप कह रही हैं कि हम कास्ट से बाहर, आउट ऑफ कास्ट शादी नहीं कर सकते, ये हमारे बड़ों ने इस चीज को अलाउ किया ही नहीं है। और इवन दो ऐसा होता है कि हमारी फैमिली इस चीज को अलाउ ही नहीं करती कि माइट भी पॉसिबल कि जो आपने चूज किया है वो आपके लिए ठीक हो। इट्स नॉट 100% कंफर्म। और बाकी ये सारी चीजें, इस चीज को लेबलाइज कर देना कि नहीं आउट ऑफ कास्ट नहीं जाना, अकीदे डिफरेंट हो गए हैं, कास्ट डिफरेंट हो गई है, या हमारे बड़े इस चीज को अलाउ ही नहीं करते, तो ये भी एक ट्रॉमा है। क्योंकि एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है ना, आप एक पर्सन को उसके मतलब कह लो कि उसकी जिंदगी का फैसला नहीं लेने दे रहे हो। अगर एक पर्सन ने किसी को पसंद किया है तो और आप उसकी चॉइस को एटलीस्ट कंसिडर करो, आप कंसिडर ही नहीं कर रहे हो, आप उसकी चॉइस को देखना नहीं चाह रहे हो, उसको सुनना नहीं चाह रहे हो, तो फिर एक ये ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस है, उसके लिए ट्रॉमेटिक इंसिडेंट जाएगा जो उसकी पूरी की पूरी लाइफ पे इंपैक्ट करेगा, और जनरेशन टू जनरेशन ये चीज जाएगी। तो ये भी एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस ही है जो आप कन्वे करते जा रहे हो, अपनी जनरेशन में कन्वे करते जा रहे हो। और इस तरह के बहुत सारे और भी बहुत सारे बिलीव्स होते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल एजुकेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है।
हमारी फैमिलीज में एजुकेशनल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि जी डॉक्टर ही बनना है, इसके अलावा तो हम किसी चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकते। ग्रेड्स आए तो A+ ग्रेड्स आए, इसके अलावा तो हम B, C, D ग्रेड को तो कंसिडर कर ही नहीं सकते, वेदर वो बच्चा पढ़ना मतलब उसका इंटरेस्ट है या नहीं है। लेकिन क्यों उसको इतना ज्यादा प्रेशराइज किया हुआ है, ट्रॉमेटाइज किया हुआ है कि नहीं हमारी फैमिली में तो डॉक्टर ही बनेंगे, हमारी फैमिली में कोई इंजीनियर नहीं बन सकता, हमारी फैमिली में तो कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, हमारी फैमिली में कोई IT फील्ड में नहीं जा सकता। क्यों? क्योंकि बाकी कजन्स डॉक्टर बने। ये कंपैरिजन बिल्ड कर दिया, ठीक है। अब ये हमारी मतलब फैमिली को देखो ना, तो लोगों के लिए ये चीज बहुत छोटी है, सिर्फ वो कह देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है। लेकिन जो बच्चा इस चीज से गुजर रहा होता है, जो सफर कर रहा होता है, उसके लिए एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस बन गया। क्यों? उसको बाउंड कर दिया अपने बिलीफ्स में, उसकी अपनी ओपिनियन को नहीं सुना गया, उसकी राय को नहीं सुना गया, उसकी पसंद नापसंद को नहीं सुना गया, उस पर बात ही नहीं की गई, उसका सुना ही नहीं गया कि वो चाहता क्या है। हो सकता है कि उसके गट्स उससे कहीं ज्यादा हो, वो डॉक्टर से कहीं आगे का सोच रहा हो, कुछ और उसके इंटरेस्ट हो, लेकिन नहीं, हमारी सोसाइटी इस चीज को कंसिडर ही नहीं करती। और इसके रिजल्ट में फिर क्या होता है कि सीवियर मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ लीड कर जाती है जनरेशन, क्योंकि ये ट्रॉमा मैं है। एक बात और कहनी थी, सॉरी टू इंटरप्ट। मैंने आजकल देखा है कि हमारे जो बच्चे हैं ना, लाइक हमारा बचपन तो बड़ा खुशगवार गुजरा है, लेकिन अब जो हमारे आगे जनरेशन है ना, छोटे बच्चे, क्योंकि मैं एक खाला हूँ, मैं बड़ा इस चीज को ऑब्जर्व करती हूँ, तो मैंने अक्सर ये चीज देखा है कि बच्चे ना परेशान रहने लग गए, लाइक उनके चेहरों से परेशानी झलक रही होती है, वो कहीं ना कहीं उस चीज का शिकार है। अगर हम उन्हें कोई चीज समझा दे या हम उनको रोके, तो बजाय वो उस चीज को अंडरस्टैंड करने के, वो कहते हैं कि हमें ना आपने रोकना नहीं है, हम जो कर रहे हैं हम वो सही कर रहे हैं। मेरी जो एक भांजी है, मैं मतलब खाला हूँ, एज खाला, तो मैं अपनी बहन को ये चीज समझाती हूँ कि आप इस तरह लेके उनको चलें कि आपके बच्चे परेशान हैं, वो इस चीज को नहीं दे सकते। जो एज साइकोलॉजिस्ट मैं जो चीज देख सकती हूँ, तो मैं उनको यही चीज समझाती हूँ, इस ट्रॉमा से निकालने की कोशिश कर रही हूँ। उस बच्ची ने मुझे ये बात बताई कि हमारे घर में इतना लड़ाई वाला माहौल है कि हमें कोई आजादी नहीं है, और वो सिर्फ 10 साल की है, जिसने मुझसे ये बात शेयर की और बताया कि इतनी लड़ाई होती है कि ना हम कहीं आ जा सकते हैं, बात बात पे चिक चिक, बात बात पे चिक चिक, ना हमें हमारी कोई पसंद की चीज दिलवाई जाती है। अगर चीज आनी है सबके लिए आनी है, वरना किसी के लिए भी नहीं आनी। तो ये डिफरेंस भी ट्रोमे की तरफ लेके जाते हैं कि आजकल हमारी छोटे छोटे बच्चे इतना इस चीज को लेकर इफेक्ट हो रहे हैं ना। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए? जी, ये जो आप बात कर रही हैं, मैं भी एक मदर हूँ, तो मैं भी इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से देख रही हूँ, अंडरस्टैंड कर रही हूँ कि हमारी सोसाइटी में और हमारी फैमिलीज में इस चीज को कंसिडर नहीं किया जाता, क्योंकि हम लोग अलाउ ही नहीं करते, हमारी सोसाइटी ही अलाउ नहीं करते कि इमोशंस को डिस्कस करो, अपने इमोशंस को एक्सप्रेस करो। हमें सिखा दिया जाता है कि अगर आपको हमारी फैमिली में ये चीज नहीं चल रही तो आपको सप्रेस करना पड़ेगा, यू हैव टू सप्रेस, यू डोंट हैव टू टॉक अबाउट दिस टॉपिक और दिस टॉपिक और दिस टॉपिक। वेदर वो बच्चा जितना मर्जी क्यूरियस है बात करने के लिए, डिस्कस करने के लिए, लेकिन हमें चुप करा दिया जाएगा, प्लीज कीप साइलेंट, बुरा लगेगा, ऐसे नहीं बात कर सकते, बड़े क्या कहेंगे, बड़े क्या सोचेंगे, ये कहेंगे कि माँ ने ये सिखा दिया। नो, अ बिग नो। अपने बच्चों को बात करने दो, अपने बच्चों के माइंड को सुनो, उनकी बात सुनो, उनके माइंड में चल क्या रहा है उनको सुनो, उनको क्लियर करो। अगर हम उनकी क्यूरियोसिटी क्लियर नहीं करेंगे तो वो अपनी क्यूरियोसिटी क्लियर करने के लिए, आजकल टेक्नोलॉजी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, बच्चे बच्चे के हाथ में फोन है, वो कहीं ना कहीं से अपने जो क्यूरियस है जिन क्वेश्चंस को लेके वो देखेगा, निकालेगा। बहुत फास्ट जा रही है टेक्नोलॉजी। सो हमें इस चीज को यहीं पे, हम अभी यंग जनरेशन है जो यहाँ पे, हम सब यंग जनरेशन है और हमने अपने बच्चों को ये चीज सिखानी है और देखनी है कि वो कहाँ कहाँ लैग कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज। उनको सबसे पहले तो बाउंड्रीज सेट करना सिखाओ। बाउंड्रीज सेट करना आजकल बहुत ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ लैग करते हैं, अगर हम फैमिली प्रेशर में आते हैं ना, तो वो हम सिर्फ अपनी मेन जो रीजन है ना, उसकी रूट कॉज ये है कि हमने बाउंड्रीज सेट नहीं की होती। हमने सबको अलाउ किया होता है कि जो मर्जी हमें कह सकता है, हम किसी को अलाउ ही नहीं करते कि नहीं, मैं आपकी बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकता, या मैं आपकी ये बात को एक्सेप्ट नहीं कर सकती। हम लोगों को नो कहना आना चाहिए। अगर हम किसी बात से पर्सनली सेटिस्फाई नहीं है, या हम किसी के ओपिनियन से सेटिस्फाई नहीं है, सो वी हैव टू से नो एट द सेम सिचुएशन, एट द सेम पॉइंट। हम जब ये करेंगे खुद और बच्चे हमें आइडियलाइज करेंगे, देखेंगे, तो फिर उनको भी नो कहना आएगा। उनको बाउंड्रीज सेट करना सिखाएं कि किस तरह से, ठीक है अगर आप बड़ों की बात सुन भी रहे हो, लेकिन फिर भी एक तरीका उनको सिखाएं कि किस तरह से उन्होंने अपने बड़ों के सामने अपनी बात रखनी है। अब उनको बोलने दें, उनको बात करने दें।
जिस तरह आप कह रही हैं कि हर वक्त घर का माहौल चिक चिक रहता है, लड़ाई झगड़ा रहता है, और ऑब्वियसली उस माहौल का प्रेशर बहुत ज्यादा उस बच्चे के माइंड पे आता है जो वो आपसे ये चीजें डिस्कस कर रही है। सो आप उसको ये सजेस्ट करें कि बेटा आपको कोई भी बात है, आपको कोई भी इशू है, ये कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आपके माइंड में आ रहा है कि मम्मा ये क्यों डिस्कस हो रहा है घर पे, ये क्यों ये बार बार डिस्कशन चल रही है, बच्ची अपनी मदर से डिस्कस करे और मदर उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करे, और सबसे पहले उस बच्ची का माइंड क्लियर करे कि बेटा ये बात इस तरह थी, लाइक उसको थोड़ा सा नैरेटिव को चेंज करते। ऑब्वियसली वो 10 ईयर्स की बच्ची है और आप उसको, हम लोग मतलब बाजू का ऐसी भी चीजें होती है जो हम बच्चों के सामने डिस्क्लोज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके माइंड इतने छोटे होते हैं कि हम उनके सामने वो चीजें डिस्कस करके उनको मजीद ट्रॉमेटाइज नहीं कर सकते, नहीं करना चाहते बीइंग अ मदर। तो उनके साथ अगर आपने उनको नैरेटिव चेंज करके समझाओ, पर्सपेक्टिव चेंज करके समझाओ, लेकिन उनको जरूर क्लियर करो कि अगर ये चीज घर में हो रही है तो इसकी ये रीजन थी बेटा, बट वी हैव टू रिजॉल्व, वी विल रिजॉल्व, डोंट वरी। तो अगर वो आपसे बात करती है तो आप उसको इस चीज के लिए क्लियर करें कि ठीक है, अगर कोई इश्यू है तो आप अपनी मदर से डिस्कस करो। अच्छा मैम, एक और बात, जैसे कि आजकल हरासमेंट के केस बढ़े हैं, बच्चों में ना इतनी समझ नहीं होती कि वो आके हमें बताएं या हमसे इतनी डिस्कस करे बातें कि कोई लड़का मेल है उनके साथ कोई ऐसी हरकत कर रहा है। इवन कि आजकल तो इतना हालात खराब हो चुके हैं कि हम मामू पर, चाचू पर या इतने पास के रिश्तों पर भी भरोसा नहीं कर सकते। तो ऐसा है कि ऐसे बच्चों को कैसे अवेयरनेस दी जाए कि बेटे आपने आके, अगर आपके साथ कोई ऐसी बात हो जाती है तो आगे आपने हमें बताना है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा बता दें। जी जी श्योर। ऐसा ऐसा है कि ये जो आपने बात की है ना, ये आजकल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि बच्चों को और बच्चियों को राइट और रॉन्ग का बताया जाए, गुड टच और बैड टच का आइडिया दिया जाए। मैं तो पर्सनली बीइंग अ मदर, बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट, मैं तो ये चीज सजेस्ट करती हूँ और मैं ये चीज इम्प्लीमेंट भी कर रही हूँ कि मैं अपनी 3 इयर्स की है मेरी बेटी, 3.5 इयर्स की, तो मैं उसको अभी से गुड टच और बैड टच में डिफ्रेंशिएट करवा रही। सो ये चीज बुरी नहीं है। हाँ, अगर आपके अनसेस्टर्स, अगर आपके दादा नाना नानी ये बात कहते भी है ना कि बेटा ये बात बच्चों से ना करो, ये बात उनके समझ से बाहर की है, ये उनको समझ नहीं आएगी, तो नहीं, आप उनको भी ये चीज रियलाइज कराएं, क्योंकि वो जिस दौर में आए ना, उस दौर में ये चीजें उस तरह से नहीं थी। तब कजन आपस में इकट्ठे बैठ भी जाते थे, पेरेंट्स को किसी चीज की फिक्र नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि जमाना इतना खराब नहीं था। अब जो दौर चल रहा है, आजकल के दौर में हमें अपने बच्चों को एजुकेट करना बहुत जरूरी हो गया है, बहुत ज्यादा जरूरी हो गया, वेदर वो बॉय है या वेदर वो गर्ल है। बॉयज के साथ भी फिजिकल अब्यूज हो जाता है, इमोशनल अब्यूज हो जाता है, गर्ल्स के साथ भी। तो ये इतने ज्यादा इंसिडेंट्स हो रहे हैं, तो ये बच्चे को, जैसे जैसे बच्चा आपका सेंस बिल्ड करता है ना, 3 साल में, 4 साल में, जब आपको लगता है कि आपका बच्चा अंडरस्टैंड कर रहा है चीजों को और आपके साथ आके डिस्कस कर रहा है चीजों को, तो आप टच का और बैड टच का बताएं। सुंबल हफीज, जस्ट मैं एक ये क्वेश्चन क्लियर कर दूं, उसके बाद मैं आपसे बात करती हूँ। तो हम उनको गाइड करें कि बेटा ये गुड टच है, आपने किसी को अलाउ नहीं करना कि मेरी बॉडी को टच करे, आपने किसी को अलाउ नहीं करना कि मेरे साथ एक बंद बिल्ड करते हैं बच्चे को कि आपने मेरे साथ इस बारे में बात नहीं करनी है। आपको उसको वर्ड्स की आइडेंटिफिकेशन देनी, क्योंकि देखिए जब हम बच्चों के साथ रहते हैं ना, बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, ऐसा नहीं है कि बच्चों को आपने गैजेट्स पकड़ा दिए और आप खुद अपनी एक्टिविटीज में लगे हैं। नो, आप बच्चों को सुने, आप बच्चों के साथ बैठे। जब आप बच्चों के साथ बैठते हैं ना, तो आपको पता चलता है कि बच्चों के माइंड में कितनी ज्यादा क्यूरीज हैं, कितने ज्यादा क्वेश्चंस हैं जो उनकी डेली लाइफ से रिलेट कर रहे होते हैं। वहीं से आपको आइडिया हो जाता है कि बच्चा कहाँ पे लैग कर रहा है, बच्चे को कहाँ कंफ्यूजन आई है। और ऐसी कोई भी बात होगी ना, जब आपने रेपो बिल्ड की होगी बच्चे के साथ, तो बच्चा आपके साथ डिस्कस करेगा। रेपो बिल्ड करना बहुत जरूरी है। इसमें बच्चे से ज्यादा फैमिली का, मदर का, फादर का रोल होता है कि बच्चे के साथ एक बाउंड्री सेट करे, उसको बताए, समझाए कि बेटा आई एम योर फ्रेंड, सो कोई भी इशू आता है तो आपको मेरे पास आना है, मुझसे बात करनी है। ये गलत बात नहीं है कि आप मुझसे बात करोगे तो मैं आपको डांटूंगी, नो। आप उसको इस चीज का रियलाइज कराओ, रेपो बिल्ड करो, ताकि अगर इस तरह की कोई बात उसके माइंड में आती है या अगर कोई उसको कुछ कहता है तो वो डायरेक्ट आपके पास आए, वेदर के वो अपने अंदर सप्रेस करता जाए या करती जाए इन फीलिंग्स को। उनको आजकल छोटे से छोटे बच्चे को जैसे जैसे उसको सेंस बिल्ड हो, तो आई सजेस्ट यू कि उसको इस चीज के बारे में एजुकेट करते हैं कि गुड टच क्या है, बैड टच क्या है, ताकि वो इस चीज में आगे ज्यादा ट्रॉमेटाइज ना। थैंक यू सो मच मैम, बहुत अच्छे से आपने क्लियर किया, थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। सुंबला प्लीज, अब आप बात कर सकती हैं। ओके, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बहुत वैलिड पॉइंट जो है वो आपने रेज किया है, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे मैं ये ऐड ऑन करना चाहूंगी कि पेरेंट्स को, जो आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनको चाहिए कि वो एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें, ठीक है, अपने बच्चों को, ताकि वो उनसे हर टॉपिक पे बात कर सके, इवन किसी भी टॉपिक पर।
जब Exactly. पेरेंट्स अपने बच्चों को वो सेफ स्पेस प्रोवाइड नहीं करते तो या तो वो अपने अंदर उस चीज को सप्रेस करता जाते हैं या फिर वो बाहर एक सेफ स्पेस तलाश करते हैं जो कि उनके लिए बहुत ज्यादा हार्मफुल साबित होती है। Exactly. जिस तरह हम देख रहे हैं कि छोटे बच्चे जो है वो उनके हाथ में फोन है, टेक्नोलॉजी है, या तो वो वहां से गलत तरीके से नॉलेज लेंगे या फिर आजकल जो हम देख रहे हैं कि छोटी बच्चियां हैं उनको जो है वो इस तरह के स्कैम्स में फंसाया जा रहा है, ठीक है, फेक रिलेशनशिप्स के नाम पे, ठीक है। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एक जो है वो एक सेफ स्पेस के जो है वो झांसे में आके लड़कियां जो इस तरह की चीजों में जाती हैं एंड देन उनके साथ अब्यूज और रेप और इस तरह की चीजें होती हैं, और इवन किडनैपिंग भी छोटे बच्चों में जो है वो ये बहुत ज्यादा देखी गई है। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम एक सेफ स्पेस प्रोवाइड करें, उनसे कम्युनिकेट करें ताकि वो हर टॉपिक हमसे इजीली आकर जो है वो डिस्कस कर सके, उन्हें बाहर जाके जो है वो दूसरों से डिस्कस ना करना पड़े। तो दिस वाज माय पॉइंट। जी सुंदर नफीस, आपने बहुत अच्छी बात की और एग्जैक्टली ऐसा ही होना चाहिए। हमें कंफर्ट जोन बच्चों को खुद प्रोवाइड करना है, हमने ही उनका कंफर्ट जोन बनना है और हमने ही उनको कंफर्ट जोन और सेफ स्पेस प्रोवाइड करनी है और हमने उनसे फ्रेंड बन के बात करनी है। नो मदर बन के बात करेंगे या जिस तरह से हम बात करेंगे कि नहीं ये गलत है, तुम ये बात करोगे तो ऐसा हो जाएगा, तुम ये बात करोगे ये गलत बात है, कोई भी तुम्हें डांट देगा, किसी के सामने ये बात नहीं करना। अगर हम उसको चुप करा देंगे ना तो वो चुप कर लेगा। बच्चे को आइडिया नहीं है कि वो क्या बात कर रहा है या क्या नहीं कर रहा। सो हम लोग उसको सेफ स्पेस प्रोवाइड करेंगे तो ही बच्चा इस चीज को थोड़ा सा लेके चलेगा और डिस्कस करेगा हमसे। सो जनरेशनल ट्रॉमा ट्रांसफर कैसे होता है? अब हमने ये देखना है कि जनरेशनल ट्रॉमा हमने डिस्कस कर लिया कि ट्रॉमा की डिफरेंट टाइप्स है और कि किस तरह से हो सकता है ट्रॉमा। ट्रॉमा हमारे इन्वायरमेंट से भी ट्रांसफर होता है, बायोलॉजिकली भी ट्रांसफर होता है, साइकोलॉजिकली भी ट्रांसफर होता है, सोसाइटी से भी ट्रांसफर होता है। तो ट्रॉमा डिफरेंट वेज है ट्रांसमिशन के, ट्रॉमा के ट्रांसफर होने के। सो हम लोग अगर किसी स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट में रह रहे हैं तो ट्रॉमा वो बिलीफ वो माइंडसेट हमारे अंदर भी बिल्ड हो जाएगा जो हमारे पेरेंट्स का माइंडसेट था। अनटिल अनलेस हम साइकिल को ब्रेक नहीं करते वो ट्रांसफर हमसे आगे जनरेशन में होता जाएगा, आगे से आगे जनरेशन में होता जाएगा। सो उन बिलीव्स और पैटर्न्स को ब्रेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सोशल मीन्स के अकॉर्डिंग भी हमारे अंदर ट्रॉमा ट्रांसफर हो सकता है कि हमारी सोसाइटी किस चीज को प्रेफर करती है, किस चीज को प्रेफर नहीं करती, सोसाइटी के लिहाज से क्या राइट रॉन्ग है, अगर वो हम चीज फॉलो करते आ रहे हैं तो वो भी ट्रांसफर होता जाएगा। और बायोलॉजिकल मीन से भी ट्रॉमा ट्रांसफर हो सकता है, लाइक अगर एक मदर को या फादर को कह लें कि एंजाइटी या डिप्रेशन का इशू है या कोई स्ट्रेस का इशू है या तो वो बच्चों में ट्रांसफर होगा। या फॉर एग्जाम्पल अगर किसी प्रेगनेंसी में ही किसी मदर को ऐसा टॉक्सिक इन्वायरमेंट दिया जाए या उसका इतना मतलब वर्स्ट इन्वायरमेंट में उसको रखा जाए कि उसको इतना ज्यादा स्ट्रेसफुल किया जाए तो वो डेफिनेटली इम्पैक्ट जाता है यूट्रस के ऊपर, उसकी ब्रेन की स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों डिस्टर्ब हो जाते हैं, उसमें बच्चे में डेवलपमेंटल डिलेज आते हैं। देन जैसे वो उसकी बर्थ होती है तो आफ्टर बर्थ वो उसको लर्निंग एबिलिटीज, लर्निंग डिफिकल्टीज फेस करना पड़ती है। उसकी जो है एबिलिटी होती है स्ट्रेस को कोप करने की वो उसमें बिल्ट इन ही नहीं हुई होती। क्यों? क्योंकि उसकी ब्रेन की स्ट्रक्चर ही उस तरह का बिल्ड हुआ होता है कि वो उसको कर ही नहीं सकता कवर। सो जैसे जैसे हमने ट्रॉमा को डिस्कस किया हम सबके माइंड में एक फियर होगा कि लोग क्या कहेंगे। हर किसी के माइंड में हर किसी का डिफरेंट फियर है। सो अब आप सब मुझे अपना अपना एक फियर चैट बॉक्स में बताएं कि आप सबको अपनी करंट लाइफ जो आप गुजार रहे हैं उसमें क्या फियर है कि लोग क्या कहेंगे, किस बारे में आपको बहुत ज्यादा लगता है। कोई एजुकेशनल प्रेशर है, इमोशनल इंस्टेबिलिटी है या कोई और हो सकता है फियर, वो आप अपना चैट बॉक्स में करें, हम देन उसको डिस्कस करेंगे। मैं बताती हूँ मैम आपको अपना पर्सनल। क्या मैं बोलूँ? जी बात करें। अच्छा मैम, बेसिकली ना मैंने साइकोलॉजी पढ़ी है। बहुत से लोग मेरे घर में तो मेरी मदर बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, लेकिन जो मेरी एक दो सिस्टर्स हैं जिनकी शादी हुई है कहीं ना कहीं वो डीमोटिवेट लाइक साइकोलॉजी पढ़ के क्या करोगी, ये करके क्या करोगी, इसका कौन सा स्कोप है, अब तो गवर्नमेंट जॉब नहीं आती, अब तो ऐसे है, अब तो वैसे है, इसमें कोई पैसा नहीं है, ऑनलाइन काम सीख लो, ये होगा वो होगा, इतने साल तुमने जाया कर दिए हैं, अब आगे तुम इस चीज को कंटिन्यू ना करना। ये प्रॉब्लम जो है ना फेस करने को मिलती है। बट वही बात कि साइकोलॉजी पढ़ के भी आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच ना आए तो फायदा नहीं है फिर। तो कहीं ना कहीं अगर मेरी मदर बहुत ज्यादा सपोर्टिव है ना तो मुझे फिर ये फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहेंगे। तो ये मेरे लिए है बहुत ज्यादा। जी ठीक है।
ठीक है रिया। अच्छा, अगर इसके साइंस एंड सिम्टम्स की बात करें तो जिनमें जनरेशनल ट्रॉमा आता है और वो उसको ब्रेक नहीं करते उसके साइकिल को, तो उनको बहुत ज्यादा मेंटल हेल्थ इश्यूज फेस करना पड़ जाते हैं। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर कोई बिलीफ भी है ना, अगर वो बिलीफ भी चलता आ रहा है और आप उसको फॉलो करते जा रहे हैं, अपने इमोशंस को सप्रेस करते जा रहे हैं, किसी से डिस्कस नहीं कर रहे, किसी से बात नहीं कर रहे, तो ये भी आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज की तरफ ले जाएगा। कोई बच्चा जो है एंशियस हो जाएगा, किसी को डिप्रेशन, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब्सटेंस की तरफ, एडिक्शन की तरफ लीड कर जाएंगे, पीटीएसडी, इंसोम्निया, सेल्फ स्टीम बहुत ज्यादा कम हो जाती है, इरिटेबिलिटी, किसी को एंगर मैनेजमेंट इश्यूज आ जाते हैं, कोई ट्रस्ट नहीं कर पाता, कंसंट्रेट नहीं कर पाता अपनी लाइफ पे, अपने काम पे। तो ये सारे के सारे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं अगर हम जनरेशनल ट्रॉमा के साइकिल को ब्रेक नहीं करते, अंडरस्टैंड नहीं करते और उसको हील करने की कोशिश नहीं करते। तो इस तरह से साइकोलॉजिकली बहुत ज्यादा साइंस एंड सिम्टम्स है जो हमें फेस करना पड़ जाते हैं। और अगर इसमें इसके साथ साथ फिजिकल इम्पैक्ट भी बहुत ज्यादा आता है हमारी बॉडी पे। क्यों? क्योंकि हमारा जो फिजिकल बॉडी है और हमारा माइंड जो है ना, बॉडी और माइंड हमारा इंटरमाइंड है, इन दोनों का आपस में बहुत डीप कनेक्शन है। अगर हमारी मेंटल हेल्थ अफेक्ट होगी तो हमारे ऊपर फिजिकल सिम्टम्स आएंगे, अगर हमारी फिजिकल हेल्थ डिटोरिएट हो रही है तो हमें मेंटल हेल्थ इश्यूज आएंगे। तो ये दोनों जो है ना इंटरवाइंड है आपस में। तो इस तरह से अगर हम उसको साइकोलॉजिकली हील नहीं करेंगे या अपने इश्यूज को डिस्कस नहीं करेंगे या उनको साइकिल को ब्रेक नहीं करेंगे तो फिजिकल इम्पैक्ट्स आएंगे। हार्ट डिजीजेस बढ़ जाएंगी, कैंसर का रिस्क हो सकता है, या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज, ब्लड प्रेशर हाई रहने लग जाता है, हेडेक रहने लग जाती है, और गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल इश्यूज तो इतने ज्यादा हैं कि क्लाइंट्स इस इशू के साथ बहुत ज्यादा आते हैं कि हमें वॉमिट्स फील होती हैं, या हमें कुछ डाइजेस्ट नहीं होता, या हमारा दिल घबरा रहता है, नोजिया रहता है, हमारा कुछ खाने को दिल नहीं करता, किसी को लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, या किसी को भूख बहुत ज्यादा लगती है। तो फटीग, इस तरह के बहुत सारे सिम्टम्स जो है ना फिजिकल इम्पैक्ट हो सकते हैं अगर हम इन चीजों को टाइमली डील ना करें तो। अब अगर बात करें जनरेशनल ट्रॉमा के कॉजेज की, तो इसमें जनरेशनल ट्रॉमा के डिफरेंट कॉजेज हो सकते हैं। ठीक है, जनरेशनल ट्रॉमा के डिफरेंट कॉजेज, कुछ कॉजेज तो हम लोगों ने अभी ड्यूरिंग कन्वर्सेशन ही डिस्कस कर लिए कि बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं कि कोई ना कोई, मतलब अगर हम डेली तो बहुत सारे कॉजेज हैं, लेकिन जो मैंने स्लाइड्स में मेंशन किए हैं मैं वो आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगी। ऑपरेशन, ऑपरेशन में ये होता है कि किसी के साथ जबरदस्ती करके, ठीक है, किसी के साथ जबरदस्ती करके उस पे इम्पोज करना चीजें। ठीक है, लाइक अगर हम लोग हिस्टोरिकल इंसिडेंट्स देखें ना, तो हॉलोकॉस्ट का एक जो है इंसिडेंट हुआ था, उसके अलावा उसमें हुआ था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान लोगों को ना उनकी फैमिली से सेपरेट कर दिया था, उनकी फैमिली से सेपरेट करके उनके ऊपर मतलब उनको कैद कर लिया था, उनको उनकी फैमिली से सेपरेट करके उनको खाना नहीं प्रोवाइड किया जाता था, उनको फैमिली को सेपरेट कर दिया, खाना नहीं दिया, उनके साथ मिसट्रीटमेंट किया, उनसे काम करवाया जाता था और उनको उसके लिए पे नहीं किया जाता था। अब उस जनरेशन का जो ट्रॉमा उनसे नेक्स्ट जनरेशन में पास हुआ और उनमें फिर सेफ्टी की फीलिंग ही नहीं रही। अथॉरिटेटिव फिगर्स को लेके, गवर्नमेंट को लेके, पुलिस को लेके, किसी को लेके मतलब उनको सेफ्टी की फीलिंग ही नहीं रही। उन्हें लगता था कि हम इस दुनिया में सेफ नहीं है, हमारी लाइफ ही सेफ नहीं है, सेफ्टी की बिल्कुल फीलिंग नहीं रही। तो ऑपरेशन भी ये एक इसकी कॉज है। कल्चरल डिसलोकेशन, कल्चरल डिसलोकेशन में ये होता है कि किसी के कल्चर को, मतलब हर एक कल्चर में एक बंदा रह रहा है, उसको उस कल्चर से निकाल के जबरदस्ती दूसरे कल्चर में उसको इम्पोज कर दिया जाए, उससे उसकी लैंग्वेज छीन ली जाए, उसको कहा जाए, उसको पनिश किया जाए कि नहीं आप हमारी ही लैंग्वेज यूज करो, हमारे ही ट्रेडिशंस को फॉलो करो। सो ये चीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये भी आपको जनरेशनल ट्रॉमा की तरफ ले जाती है कि आपसे जब आपकी लैंग्वेज ले ली गई, ठीक है, आपसे आपके ट्रेडिशंस ले लिए गए और आपको कहा कि इम्पोज कर दिया गया कि नहीं आपको इसी कल्चर को फॉलो करना है, आप अपने होमलैंड के कल्चर को फॉलो नहीं कर सकते। तो ये चीज भी जो है ना, कल्चरल डिसलोकेशन भी आपको जनरेशनल ट्रॉमा की तरफ ले जाती है। नेक्स्ट, इंटरजनरेशनल पॉवर्टी। अगर पॉवर्टी की बात की जाए तो कुछ इस तरह के केसेस भी देखने में आए हैं कि जिनके एंसेस्टर्स जो है ना पॉवर्टी का शिकार थे, तो वो फाइनेंशियली इतने अनस्टेबल थे कि वो अपने बच्चों को अपना अच्छा खाना नहीं दे सके, अच्छी पढ़ाई नहीं दे सके, अच्छी तालीम नहीं मुहैया कर सके, जिसके रिजल्ट में वो ट्रॉमा का शिकार हो गए। उनकी इमोशनल नीड्स नहीं पूरी हुई, उनकी फाइनेंशियल नीड्स नहीं पूरी हुई, ना वो पढ़ लिख सके, ना उनको अच्छा खाना मुयसर हुआ। तो ये भी पॉवर्टी जो है ना, इंटरजनरेशनल पॉवर्टी भी ये आपको जनरेशनल ट्रॉमा की तरफ लेके जाती है। आप फिर ऑब्वियसली आपका माइंड भी वैसा ही बिल्ड होता है कि अब हमारे पेरेंट्स हमें इस तरह का नहीं खिला सके, हमारे पेरेंट्स हमें ये तालीम नहीं दिला सके, जब हमने भी तालीम नहीं ली तो हम आगे से अपने बच्चों को किस तरह से कन्वे करेंगे, हम भी नहीं कर सकते। सो उनको अपॉर्चुनिटीज भी फिर कम लगने लग जाती हैं कि हमारे पास अपॉर्चुनिटीज कैसे आएंगी, हम किस तरह से मनी बनाएंगे, हम किस तरह से अपने बच्चों को उनकी हेल्थ का ख्याल रखेंगे, या किस तरह से उनको फाइनेंशियली स्टेबल करेंगे, किस तरह से उनको एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे।
तो एक इंटरजनरेशनल पॉवर्टी भी एक फैक्टर है जो आपको जनरेशनल ट्रॉमा की तरफ लेके जाता है। इसके अलावा इन यूट्रो एक्सपीरियंस में वही बात है कि अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इस तरह की कुछ स्ट्रेसेस हैं या टॉक्सिक एनवायरनमेंट में मदर को रखा जाता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाता है यूट्रस पे, और वो उसके डिफेक्ट्स आ जाते हैं, उसके ब्रेन में डिफेक्ट्स आ गए हैं, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन चेंजेस हो गए हैं उसके ब्रेन में, उसकी डेवलपमेंटल डिलेज आ गए हैं। तो ये सारी चीजें, अब ये ऑब्वियसली ये इन यूट्रो एक्सपीरियंस एक बायोलॉजिकल ये कॉज है, ये एक बायोलॉजिकल कॉज है क्योंकि ये बिफोर बर्थ ही मदर से बेबी के अंदर शिफ्ट हो गई। क्यों? क्योंकि मदर ने उस ट्रॉमा को, उस स्ट्रेसर को रिजॉल्व करने की कोशिश नहीं की, उसने उसको रिजॉल्व नहीं किया, वो उसी इन्वायरमेंट में रही, उसको यही इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया गया, वो उसी इन्वायरमेंट में रही, उसने उस इन्वायरमेंट को चेंज नहीं किया, उसने बाउंड्रीज नहीं बिल्ड की, उसने एफर्ट नहीं की, तो वो सारा का सारा फैक्टर जो है ना वो इफेक्ट आ गया बच्चे के ऊपर। अब उस बेबी का इसमें कसूर नहीं है, वो आया ही इन्हीं जीन्स के साथ है, उसके अंदर जीन्स ही इसी तरह के हैं कि वो इस चीज को सॉर्ट अनटिल अनलेस वो इस साइकिल को ब्रेक नहीं करेगा, ये जनरेशंस में पास होता चला जाएगा। इसके अलावा अगर हम सर्वाइवल रिस्पॉन्स टू ट्रॉमा की बात करें तो अब हम सबकी लाइफ में डिफरेंट इंसिडेंट होते हैं, ठीक है, लेकिन हमारी बॉडी है कि सर्वाइवल के लिए बनी है, हमने अपना सर्वाइवल फाइंड आउट करना है कि हमने किस तरह से किसी सिचुएशन में सर्वाइव करना है, ठीक है। सो हम सबके ना सर्वाइवल रिस्पॉन्स भी डिफरेंट है, हम डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करते हैं टू डिफरेंट सिचुएशंस। लाइक मैं हूँ, अक्सा है, सुम्बत है, मिस आरफा है, डिफरेंट हम सारे है ना इंडिविजुअल वेरी करते हैं, हमारे माइंडसेट वेरी करते हैं, हमारी थिंकिंग पैटर्न वेरी करते हैं, हमारा बिहेव करने का तरीका अलग है, हमारा सुनने का तरीका अलग है, हमारा कोप करने का तरीका अलग है। सो हम सब बने सर्वाइवल के लिए, हम सर्वाइवल के लिए एफर्ट जरूर करेंगे लेकिन हम सबका वे डिफरेंट होगा, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये 5 रिस्पॉन्सेज होते हैं सर्वाइवल के, जिसमें हम ट्रॉमा से निकलने के लिए जो है ना हम सर्वाइवल रिस्पॉन्स की तरफ जाते हैं कि हमने किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करना है, हमने स्ट्रेस को किस तरह से रिस्पॉन्ड करना है, हमारी बॉडी किस तरह से स्ट्रेस को रिस्पॉन्ड करेगी, रिएक्ट करेगी। इसमें 5 रिस्पॉन्सेज हैं, फ्लाइट, फाइट, फ्रीज, फॉन एंड फ्लॉप। ये मैं आपके साथ ब्रीफली डिस्कस करती हूँ। फाइट रिस्पॉन्स में ऐसा होता है कि फाइट रिस्पॉन्स में हमारी बॉडी, अगर हमारी बॉडी ने किसी थ्रेट को परसीव किया है, कोई ऐसा इंसिडेंट है या कोई ऐसा स्ट्रेसर है हमारे सामने आ गया है कि हमने थ्रेट को परसीव किया, फॉर एग्जांपल इट्स अ माइनर एग्जांपल कि हमारे सामने कोई वाइल्ड एनिमल आ गया और अब हमारी बॉडी एकदम ना, हम परेशान हो जाते हैं जल्दी से कि अब क्या करें, ये तो हमारे सामने आ गया है एनिमल, अब ये हमें नुकसान ना पहुंचा दे। तो फाइट में ऐसा होता है कि हमारी बॉडी, हमारा जो नर्वस सिस्टम है ना वो एक्टिवेट करता है हमारे ब्रेन को और वो कहता है कि वी हैव टू फाइट, वी हैव टू, हमें इसमें कुछ करना है, हमें इससे निकलना है, इस सिचुएशन से निकलने के लिए हमारी बॉडी फाइट करती है और हम लोग वेज फाइंड आउट करते हैं कि हम किस तरह से इससे निकल सकते हैं, ठीक है। देन फ्लाइट में हमें जैसे ही थ्रेट परसीव होता है हम उस डेंजर से भागने की कोशिश करते हैं, हम उसे एस्केप लेते हैं, हम उसको कन्फ्रंट नहीं करते। फाइट में हमने उसको कन्फ्रंट किया कि हम किस तरह से निकल सकते हैं सिचुएशन से, हम भाग सकते हैं या हम छुप सकते हैं या इस तरह के हमारे माइंड हमें आइडियाज देता है, लेकिन हम उस सिचुएशन को कन्फ्रंट करते हैं, हम उसे एस्केप नहीं देते। लेकिन फ्लाइट रिस्पॉन्स में हम उस सिचुएशन से भागते हैं, हम कहते हैं कि हम इसको फेस ही नहीं कर सकते, हम यहाँ से भाग जाते हैं, ठीक है। लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर घर में चोर घुस आए हैं, अब हमें इसको कन्फ्रंट करने की सिचुएशन, लेकिन हम कन्फ्रंट नहीं कर रहे, हमारा सर्वाइवल रिस्पॉन्स हमें ये मैसेज नहीं कन्वे कर रहा हमारी बॉडी को कि हम कन्फ्रंट करें। हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि चलो हम जल्दी जल्दी, अगर चोर घुस आए, हमें पता चल गया कि चोर आ रहे हैं, हम या तो छुप जाएंगे या घर से भाग जाएंगे या कुछ ना कुछ ऐसा कर लेंगे कि हमने उसे एस्केप कर लिया, हमने अवॉइड ही कर लिया उस हमने ना ट्रॉमा को अवॉइड कर लिया। ये हमारा सर्वाइवल रिस्पॉन्स बन गया कि हमने उस ट्रॉमा को अवॉइड कर लिया, एस्केप ले लिया उस सिचुएशन से कि हम नहीं इसको फेस कर सकते। नेक्स्ट है फ्रीज एक ऐसा सर्वाइवल रिस्पॉन्स है कि जिसमें आपकी बॉडी जो है ना बिल्कुल फ्रीज हो जाती है, आप यू डोंट हैव द एबिलिटी टू डू एनीथिंग, आप में एबिलिटी नहीं रहती कि आप कुछ कर सकें, ना आप में फाइट करने की एबिलिटी है, ना आप में फ्लाइट की एबिलिटी है, यू आर जस्ट फ्रीज कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं बोल ही नहीं सकता, मैं तो इसको फेस ही नहीं कर सकता, सिंपल। आप शट डाउन हो जाते हो और आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना छोड़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल के किसी को स्टेज फियर होता है, वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होता है, वेल प्रिपेयर्ड होता है प्रेजेंटेशन के लिए, वेल प्रिपेयर्ड होता है किसी भी पब्लिक स्पीकिंग के लिए, लेकिन जैसे ही वो इंडिविजुअल स्टेज पे जाएगा वो ब्लैंक हो जाएगा, नम हो जाएगा और वो सारे वर्ड्स वैनिश हो जाएंगे, सब कुछ भूल जाएगा कि व्हाट आई हैव टू से इन फ्रंट ऑफ ऑल द ऑडियंस। दैट्स द फ्रीज रिस्पॉन्स। तो कुछ लोग इस फ्रीज रिस्पॉन्स को यूटिलाइज करते हैं ट्रॉमा या किसी भी स्ट्रेसर के रिएक्शन में, वो बिल्कुल नम हो जाते हैं और वो कुछ भी नहीं कर पाते। नेक्स्ट रिस्पॉन्स इज फॉन।
फोन एक ऐसा स्ट्रेस सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जो ना बाउंड्रीज जब ना क्रिएट हुई हो ना तो ये तब यूज होता है। ये रिलेशनशिप्स में जब इशू आते हैं ना ये उनमें यूज होता है। रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, पार्टनर्स के दरमियान रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या इन लॉज के दरमियान रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, या किसी के साथ भी रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट्स है ना, तो ये उनमें ये रिस्पॉन्स यूज होता है फोन। फोन में ये होता है कि इंडिविजुअल सर्वाइव करने के लिए ना पीपल प्लीजिंग शुरू कर देता है। कोडिपेंडेंसी का फैक्टर बहुत ज्यादा बिल्ड हो जाता है कि अब बाउंड्रीज नहीं सेट की उसने, उसको नो कहना नहीं आता। अब उसने अपनी सेफ्टी को मेंटेन रखने के लिए कि कोई मुझे अब्यूज ना करे, कोई मुझे बात ना करे, कोई मुझे बुरा भला ना करे, वो हर किसी की हाँ में लाना शुरू कर देता है। हाँ ठीक है, तुम ठीक कह रहे हो। अपनी पर्सनल डिजायर को, पर्सनल सेटिस्फेक्शन को, पर्सनल ओपिनियन को उसने सप्रेस कर दिया। अपनी बात उसने किसी के सामने नहीं रखी और दूसरे की बात सुन के कह दिया हाँ तुम ठीक कह रहे हो, जो कह रहे हो बिल्कुल ठीक कह रहे हो। इससे उसकी पर्सनल डिजायर तो सप्रेस हो गई, लेकिन उसने अपनी सेफ्टी को मेंटेन कर लिया। उसको ऐसा लगता है कि मैं इस तरह सेफ रहूंगा, मेरे रिलेशनशिप सिक्योर हो जाएंगे, मेरे रिलेशनशिप खराब नहीं होंगे किसी के साथ। तो ये हम कुछ लोग इस सर्वाइवल रिस्पॉन्स को यूज करते हैं, फोन। एंड द लास्ट वन आई एम गोइंग टू डिस्कस इज फ्लॉप। फ्लॉप एक ऐसा सर्वाइवल रिस्पॉन्स है जिसमें हम फिजिकली एंड इमोशनली नम हो जाते हैं, फेंट हो जाते हैं। मतलब हमें कुछ नहीं पता कि हमने इसमें क्या करना है, और इसमें फिजिकली भी बॉडी आपकी फेंट हो जाती है। लाइक अगर इसकी मैं आपको एक माइनर सी एग्जांपल दूं तो जिस तरह कुछ एनिमल्स होते हैं, अब प्रेडेटर आ रहा है और प्रेडेटर से बचने के लिए वो ऐसा प्रिटेंड कराते हैं कि दे आर डेड, ठीक है, वो जिंदा ही नहीं, वो ऐसा लेट जाते हैं, सांस रोक के लेट जाते हैं कि वो मर गए हैं और अब प्रेडेटर नहीं आएगा या हमें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो वो हार्म से बचने के लिए ना वो इस तरह से बिल्कुल फेंट हो जाते हैं और वो बिल्कुल नम होकर लेट जाते हैं कि हम तो इस चीज को फेस नहीं कर सकते, ना हमने इसको कन्फ्रंट करना है, ना हमने इससे भागना है, ना हमने इसको कोशिश करनी है कि हम शायद इससे कन्फ्रंट करके फाइट कर सकें। वो बिल्कुल ही फ्लॉप हो जाते हैं, ठीक है। तो इसमें ऐसा हुआ होता है कि हमारे जो नर्वस सिस्टम है ना वो बहुत ज्यादा डिसरेगुलेट हुआ होता है। तो उसको रेगुलेट करने के लिए या उसको वर्किंग में लेके आने के लिए हम जो है ना ये सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज यूज करते हैं। और हर किसी का सर्वाइवल रिस्पॉन्स वेरी करता है। हम सब इंडिविजुअल का सर्वाइवल रिस्पॉन्स डिफरेंट होगा। हमें कोई भी स्ट्रेसर आएगा तो अगर मुझे कोई स्ट्रेसर आता है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मुझे कोई ना कोई स्ट्रेसर आता है तो मैं ज्यादातर ना कभी फाइट में चली जाती हूँ, कभी फ्लाइट में चली जाती हूँ। या मुझे लगता है कि मैं इसको कन्फ्रंट कर लूंगी और मैं इसको कोशिश करती हूँ कन्फ्रंट करने की। और बात वक्त ऐसा सिचुएशन होता है कि जिसमें अगर मैं इमोशनली स्टेबल नहीं हूँ या कोई और चीज है जो मुझे ट्रिगर कर रही है बैक एंड पे, तो मैं उसको अगर कन्फ्रंट करने के लिए रेडी नहीं हूँ ना तो मैं फ्लाइट में चली जाती हूँ, मैं उसे एस्केप लेती हूँ। लेकिन जैसे लगेगा कि अच्छा मैं नहीं कर पा रही, ओके ठीक है, आई एम गोइंग टू स्लीप, मैं सोने लगी हूँ। ये क्या है, मैं अवॉइड कर रही हूँ और मैं एस्केप ले रही हूँ इस सिचुएशन से। हीरा मुकद्दस, वरदान, नदीम और जो सब हैंड रेस कर रहे हैं, आई एम जस्ट गोइंग टू वाइंड अप। उसके बाद इंशाल्लाह हम क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। थोड़ी सी स्लाइड्स रह गई हैं, उनको डिस्कस करके इंशाल्लाह हम बाकी के क्वेश्चंस को क्लियर करेंगे। नेक्स्ट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, ब्रेकिंग द साइकिल ऑफ इंटरजेनरेशनल या जनरेशनल ट्रॉमा। हमने जनरेशनल ट्रॉमा को भी डिस्कस कर लिया, हमने उसकी कॉजेस को डिस्कस कर लिया, उसके साइंस एंड सिम्टम्स को डिस्कस कर लिया, हमने सर्वाइवल रिस्पॉन्सेज को डिस्कस कर लिया कि किस तरह से हम ऐसे सर्वाइव करते हैं, ट्रॉमा से निकलते हैं। अब हमने इस साइकिल को ब्रेक करना है। नाउ आई हैव अ क्वेश्चन फॉर ऑल ऑफ यू, reply in chat box please. Where do you struggle the most with setting boundaries with parents, siblings or yourself? आपको बाउंड्रीज सेट करने में सबसे ज्यादा इशू कहाँ पे आया था, आप पेरेंट्स के साथ, सिबलिंग्स के साथ या खुद के साथ? One question is this, and the second one, what do you want to heal so that the next generation doesn't have to carry it? Because आज हम यहाँ पे जनरेशनल ट्रॉमा की साइकिल को ब्रेक करने के लिए है। सो वी हैव द आंसर कि हमने क्या हील करना है अपने अंदर, कि हमारे अंदर ये जो चीज आ रही है, ये ट्रॉमा है, ये बिलीफ है, ये पैटर्न है जो जिसको हमने चेंज करना है, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन में ना आए। सो आप सब ये इन क्वेश्चंस के आंसर्स को चैट बॉक्स में प्लीज लिखें। देन हम डिस्कस करते हैं कि हमने जनरेशनल ट्रॉमा को किस तरह से ब्रेक करना है।
वर्दा नदीम, आपने क्वेश्चन किया है यूट्रस वाली बात। अच्छा, वो मैं क्लियर कर देती हूँ। उसमें ये होता है कि अगर एक मदर एक्सपेक्ट कर रही है, ठीक है, उसकी प्रेगनेंसी है और वो किसी टॉक्सिक इन्वायरमेंट में रहती है, लाइक उसका इन्वायरमेंट बहुत ज्यादा टॉक्सिक है और स्ट्रेसर्स हैं बहुत ज्यादा जिनको वो फेस कर रही है, कन्फ्रंट कर रही है, और साथ ही साथ वो प्रेगनेंसी भी है उसको, तो जब उसके जो टॉक्सिक इन्वायरमेंट है ना, जो उसके जो स्ट्रेसर्स हैं, उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट जाएगा बेबी पे। अगर वो मदर हैंडल नहीं कर पा रही, कोप नहीं कर पा रही, या उन चीजों को मैनेज नहीं कर पा रही, उसके स्ट्रेसर्स इतने ज्यादा हैं, तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट बेबी पे जाएगा, यूट्रस पे जाएगा, और वो फिर बच्चे के अंदर उसकी ब्रेन की जो स्ट्रक्चर है उसको भी डिस्टर्ब करता है, फंक्शंस को भी डिस्टर्ब करता है, और फिर उसकी जो है ना कोपिंग एबिलिटी नहीं आती बच्चे में, डेवलपमेंटल डिलेज बहुत ज्यादा आएंगे उस बच्चे में, और जब उसकी बर्थ होगी उसको लर्निंग डिफिकल्टीज फेस करना पड़ेंगी, उसका जो स्ट्रेस रिस्पॉन्स का जो सिस्टम होगा ना वो डिस्टर्ब होगा। वो क्यों? क्योंकि ये उसके जीन्स में ये चीज आई है, उसको स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि उसकी माँ को उससे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा था, वो ऐसे माहौल में रह रही थी जहां उससे स्ट्रेस मैनेज नहीं हो रहा था, तो वो चीज बच्चे के अंदर भी आएगी। उसको स्ट्रेस रिस्पॉन्स सिस्टम नहीं करना आएगा कि किस तरह से उसने इसको स्ट्रेस को हैंडल करना है, जब तक उसको ये सिखाया नहीं जाएगा कि किस तरह से बेटा आप इस तरह से स्ट्रेस को हैंडल कर सकते हो, तो वो ये मदर से यूट्रस में ये चीज ट्रांसफर हो सकती है। एजुकेशनल प्रेशर। Okay, I want to heal my emotional attachment to be emotionally independent. I want to heal or overcome that feeling. जो नो कहने के बाद आती है, I feel कि उनको बुरा लगेगा, but after some वो खत्म हो जाती है. I wanna heal my inner child before going to marriage. Okay. Difference between fawn and flop. Okay, so but face my fawn and flop का difference थोड़ी देर में आपसे दोबारा डिस्कस करती हूँ. Separation, anxiety and attachment हमें बाउंड्री सेट करनी और बैलेंस रखना है. नेक्स्ट जनरेशन के मेंटल हेल्थ को सेव. Okay. Okay. So now I'm here going to discuss breaking the cycle of generational trauma. First of all, इसमें आता है understand what you inherited. ठीक है, सबसे पहले हमने साइकिल को ब्रेक करने के लिए इस चीज को अंडरस्टैंड करना है कि हमने अपने एंसेस्टर्स से क्या इनहेरिट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप इस चीज को रिकॉग्नाइज करो कि आपकी बॉडी में किसी न किसी चीज का ट्रॉमा है, कोई ना कोई चीज है जो स्टक हुई भी है। ठीक है, कोई ना कोई ऐसा बिलीफ है या कोई ना कोई ऐसा बिहेवियर है, ऐसा पैटर्न है जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, या जिसने आपको रोक के रखा हुआ है। कोई ऐसा लिमिटिंग बिलीफ आ गया है जिसने आपको रोका हुआ है कि आई कांट डू दिस, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, या आई एम अनलवेबल, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, आई एम अनसेफ। ठीक है, जो भी आपका ट्रॉमा है, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू रिकॉग्नाइज दैट। आप उस ट्रॉमा को रिकॉग्नाइज करो कि मैं इस ट्रॉमा से गुजर रहा हूँ, या ये चीज है जो मुझे डिस्टर्ब कर रही है, जो मुझे लाइफ में आगे बढ़ने नहीं दे रही, या जो मैं अपने नेक्स्ट जनरेशन में पास ऑन नहीं करना चाहती। ठीक है, सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड कर लिया, रिकॉग्नाइज कर लिया, देन नाउ यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट यू इनहेरिटेड। आपने इनहेरिट क्या किया? ठीक है, इनहेरिट क्या किया आपने? किसी पैटर्न को इनहेरिट किया, किसी बिहेवियर को इनहेरिट किया, एडिक्शन को इनहेरिट किया, ठीक है, एजुकेशनल प्रेशर को इनहेरिट किया, नेग्लिजेंस को इनहेरिट किया, अब्यूज को इनहेरिट किया। सबसे पहले अंडरस्टैंड करें, जब आपने अपने उस वाउंड को जो आपके अंदर मौजूद है, आपने उस जख्म को नाम दे दिया, तो आप हीलिंग के स्टेप की तरफ खुद ब खुद बढ़ जाएंगे। जब आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया कि आपने क्या इनहेरिट कर लिया है अपने एंसेस्टर से, सबसे पहले आपने उसको अंडरस्टैंड करना है। जब आप अंडरस्टैंड कर लेंगे कि आपने क्या इनहेरिट कर लिया, तो फिर हम उसको, ये हीलिंग का फर्स्ट स्टेप होता है जब हम किसी चीज को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि हमने क्या इनहेरिट कर लिया है। तो जब तक हमें मसले का पता नहीं चलता ना, हम उसके हल की तरफ नहीं जाते, सोल्यूशन की तरफ नहीं जाते। तो सोल्यूशन के लिए हमें प्रॉब्लम का पता होना जरूरी है। तो हमें जैसे ही वाउंड का पता चलेगा कि ये हमारा वाउंड है, तो ये हमारे हीलिंग की तरफ फर्स्ट स्टेप होगा। तो सबसे पहले आपने अंडरस्टैंड करना है कि व्हाट यू इनहेरिटेड। जिस तरह से आपने मुझे क्वेश्चंस के आंसर दिए ना, या आपको साइकिल को ब्रेक करना है, तो आप उसी तरह से इसको अंडरस्टैंड करें और आप इसको इंप्लीमेंट करते जाएं। अब आप आइडेंटिफाई करें, आप सब बारी बारी कि आपने क्या इनहेरिट किया। बेशक आप कॉपी पेंसिल ले लें या चैट बॉक्स में ही यूज कर लें, और आप लिखते जाएं कि आपने क्या इनहेरिट किया। राइट, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज एक्नॉलेज द सोर्स विदाउट शेम। नाउ यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये किस सोर्स से आप में आया। ठीक है, वेदर ये आप में ट्रांसमिट हुआ साइकोलॉजिकली, वेदर ये आप में ट्रांसमिट हुआ बायोलॉजिकली, वेदर ये आप में ट्रांसमिट हुआ बिहेवियरली, ये या वेदर कल्चरली, वेदर सोशली, किस सोर्स से आप में ये ट्रांसमिट हो गया। ठीक है, कि
आपने उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना है विदाउट शेम। आपको मतलब बगैर किसी शर्मिंदगी के आपने उस सोर्स को आइडेंटिफाई करना है कि ये एंसेस्टर से आप में आ गया है, अब ये एक बिहेवियर पैटर्न है जो आपका बिल्ड हो गया है। कि एजुकेशनल प्रेशर, फॉर एग्जांपल आप एजुकेशनल प्रेशर ले रहे हैं कि आपको एजुकेशनल प्रेशर था कि, या फॉर एग्जांपल हम ये भी ले सकते हैं कि जैसे आजकल की बात करें, हम कहते हैं कि एंसेस्टर्स की लड़कियां बाहर नहीं जाएंगी, लड़कियां 12वीं के बाद नहीं पढ़ेंगी, इससे ज्यादा हमारे फैमिली में लड़कियां नहीं पढ़ती, या लड़कियां किसी मेल के बगैर बाहर अकेली नहीं जा सकती। हमारी सोसाइटी इस चीज को अलाउ नहीं करती कि नहीं जाना बाहर। सो आपने इस चीज को अगर ले लिया है, ये आपके जीन्स में आ गया है, या ये आपके बिहेवियर में ये बात आ गई है, आपने इसको पास ऑन कर लिया है ट्रॉमा को, तो अब आपने इसको ब्रेक करना है। तो आप एक्नॉलेज करें कि ये मेरे अंदर आ गया है और ये इस वे से आया है, सो नाउ आई हैव टू ब्रेक डाउन दैट। मैं ये आगे पास ऑन नहीं करूंगी, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज हील द नर्वस सिस्टम। अच्छा, जब हम ट्रॉमेटाइज हुए होता है ना, या हमने किसी पैटर्न को बिल्ड किया होता है, या हमारे अंदर कुछ बिहेवियर्स ऐसे बिल्ड हुए होते हैं जो हमें हमारे लिए प्रॉब्लमेटिक होते हैं, हमारी डेली लाइफ को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं, तो हमारा नर्वस सिस्टम बहुत ज्यादा डिसरेगुलेट हो जाता है। हमारा नर्वस सिस्टम ठीक से रिस्पॉन्ड नहीं करता। ठीक से रिस्पॉन्ड इस सूरत में नहीं करता कि हमें स्ट्रेस को मैनेज नहीं करना आ रहा, हमें किसी से बात नहीं करनी आ रही, हमें बाउंड्रीज नहीं सेट करनी आ रही, हमें मतलब हम किसी भी चीज में हमें से लगता है कि हम नहीं कर पा रहे, हमसे नहीं हो पा रहा। सो अपने नर्वस सिस्टम को हील करना, साइकिल को ब्रेक करने के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। अब आप अपने नर्वस सिस्टम को किस तरह से हील कर सकते हो? विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, आप मेडिटेशन कर सकते हो, माइंडफुलनेस कर सकते हो, ठीक है। उसके अलावा आप वॉक के लिए जा सकते हो, योगा कर सकते हो, नेचर के साथ कनेक्ट कर सकते हो, या किसी सिग्निफिकेंट अदर के साथ बात कर सकते हो, या किसी फ्रेंड के साथ आप बैठ के डिस्कस कर सकते हो कि आपको क्या मसला है, क्या इशू है जो आपके अंदर आ रहा है। सो जब आप किसी से बात करते हो या इन थेरेपीज को अप्लाई करते हो अपने ऊपर, तो आप अपने नर्वस सिस्टम को हील करते हो। क्यों? इन थेरेपी से ग्राउंडिंग टेक्निक हो गई या डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज हो गई, इसमें आपने खुद को प्रेजेंट मोमेंट में ले जाना है, ठीक है। ये इनका मेन पर्पस ये होता है कि ये आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आता है, ये आपको पास्ट का टेंशन खत्म हो जाएगी, फ्यूचर की टेंशन खत्म हो जाएगी, आपको ये प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगा। ये टेक्निक आपको प्रेजेंट मोमेंट में ले आएगी और आपको इस चीज का आइडिया होगा कि नाउ आई हैव टू हील, ठीक है। अब मुझे इस साइकिल को ब्रेक डाउन करना है, सो नाउ आई हैव टू हील। सो आप क्या करोगे? ब्रीदिंग एक्सरसाइज अगर करोगे तो आपका पूरा का पूरा फोकस आपके ब्रीदिंग पैटर्न पे चला जाएगा, ठीक है। सेंसेस को यूज करना है अपने। व्हाट आर यू, आपको क्या नजर, टू थिंग्स टू टच, वन थिंग टू टेस्ट। आप कुछ कर लिया, ना आप पास्ट को सोच रहे हो ना आप फ्यूचर को सोच रहे हो, आपने प्रेजेंट पे फोकस करके इनको यूटिलाइज करना है। इससे आपका नर्वस सिस्टम हील होगा। जब आपका नर्वस सिस्टम हील होगा तो अच्छे से वर्क करेगा, ताकि आप इस साइकिल को ब्रेक डाउन कर सको और आप अपने आप को प्रायोरिटाइज कर सको, ठीक है। आपका जब नर्वस सिस्टम हील होगा ना, तो आपके बहुत सारे क्यूरीज जो आपके माइंड में चल रहे होंगे वो ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाएंगे। मैं क्या करती हूँ अपने नर्वस सिस्टम को हील करने के लिए? अगर कोई स्ट्रेसर मुझे आया है या मुझे कोई ट्रिगर आया है, तो मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस इसलिए शेयर कर रही हूँ कि शायद ये किसी के लिए हेल्पफुल हो सके। मैं ऐसा करती हूँ कि मैं जर्नलिंग कर लेती हूँ, मैं लिख लेती हूँ बैठ के कि अच्छा ये हुआ मेरी लाइफ में, मैं यहाँ पे आकर स्टक हो गई हूँ, नाउ व्हाट आई हैव टू डू। अब मैं क्या कर सकती हूँ? मैंने जो हुआ वो सारा लिख लिया। जब हम एक दफा अपने अंदर से वो बाहर निकाल देते हैं ना, वेदर वो किसी से बात करके निकाल लें या वेदर वो लिख के निकाल लें, तो हमारे नर्वस सिस्टम से, हमारे माइंड से स्ट्रेस कम हो जाता है, उसका लेवल कम हो जाता है। फिर हम लॉजिकली सोचने लग जाते हैं, इमोशनल कम सोचते हैं और लॉजिकली ज्यादा सोचते हैं। क्योंकि जब हम इमोशनली सोच रहे होते हैं ना, तो हमारे इंटेलिजेंस का लेवल ऑटोमेटिकली लो हो जाता है। क्योंकि हमारे इमोशंस हाई होते हैं और इंटेलिजेंस कम होती है। लेकिन जैसे ही हम लॉजिकली सोचते हैं, इंटेलिजेंस हाई होती है, तो इमोशनली तो हमारे इंटेलिजेंस का लेवल ऊपर चला जाएगा और इमोशंस नीचे आ जाएंगे और हम बैलेंस लेके हम सॉल्यूशंस की तरफ जाएंगे। सो है कि चेंज द नैरेटिव। चेंज द नैरेटिव में ये होता है कि हम पर्सपेक्टिव को चेंज करना है, हमें अपने थॉट्स को रीफ्रेम करना है, हमने सोचने के अंदाज को बदलना है कि ठीक है हमारे साथ ये हो गया, नाउ आई हैव टू हील, सो आई हैव टू चूज दिस वे, ठीक है। हमें एजुकेशनल प्रेशर आ गया, बट नाउ आई हैव टू स्टॉप दिस पैटर्न एंड आई हैव टू चूज दिस फॉर माय नेक्स्ट जनरेशन, ठीक है। नैरेटिव को चेंज कर लें।
ठीक है, आप उसके सोचने के अंदाज को बदल लें, देखने के अंदाज को बदल लें कि अच्छा ठीक है, अगर हमारे अंदर ये ट्रॉमा आ गया है या ऐसा इंसिडेंट है जो हुआ था जिसने हमारे इन पैटर्न्स को चेंज कर दिया है या हमारे बिहेवियर्स डिस्टर्ब हो गए हैं, बट हम इनको चेंज कर सकते हैं। हो सकता है कि उन हमारे एंसेस्टर्स को इस चीज का नॉलेज ना हो, बट हम में अवेयरनेस है तो हम इस चीज को रीफ्रेम कर सकते हैं, हम इस चीज को बदल सकते हैं, हम इस चीज को अपने जनरेशन में मूव ऑन नहीं होने देंगे। ठीक है, क्रिएट न्यू पैटर्न्स। जब आप न्यू पैटर्न्स को क्रिएट करेंगे, न्यू पैटर्न्स को क्रिएट करने से मुराद कि आप ट्रेडिशंस को चेंज करें, आप कह लें कि ऐसी कन्वर्सेशंस बिल्ड करें अपने रिलेशंस के साथ, अपने बच्चों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, कि आप ये चीज नॉर्मलाइज करें आहिस्ता आहिस्ता, ग्रेजुअली। आप एकदम से अपने जो माइंडसेट है दूसरों पे इम्पोज नहीं कर पाएंगे। आप बाउंड्रीज जो सेट करने की बात कर रहे हैं, यहाँ सबको बाउंड्रीज इश्यूज काफी ज्यादा है, तो एकदम हर कोई आपकी बात को कंसिडर नहीं करेगा। शुरू में काफी इश्यूज आएंगे, लेकिन जब आप पैटर्न्स को बिल्ड करना शुरू कर देंगे तो कुछ दिन इश्यूज आएंगे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आपके बच्चे उस पैटर्न को बिल्ड करेंगे। और जब आपके बच्चों ने उस पैटर्न को बिल्ड कर लिया तो इट मीन्स कि आपने उस साइकिल को ब्रेक कर दिया, आपने उस जनरेशनल ट्रॉमा के साइकिल को ब्रेक कर दिया। वो आप तक आया था लेकिन आपने ब्रेक कर दिया, अब आप नेक्स्ट जनरेशन में उसको मूव ऑन फॉरवर्ड नहीं कर रहे। ठीक है, तो आपने न्यू पैटर्न्स को बिल्ड करना है, आपने सेफ स्पेस अपने बच्चों के लिए बिल्ड करनी है, आपने ऐसे ट्रेडिशंस बनाने हैं जिसमें आप उनकी भी सुन सकें, अपनी भी मनवा सकें। ठीक है, तो आप उनको इतनी सेफ स्पेस दें कि वो आपकी भी सुने, वो आपकी भी बात को वैल्यू करें कि हमारे पेरेंट्स हमें ठीक कह रहे हैं। अगर रोक रहे हैं किसी बात से तो उसके पीछे ये रीजन है, क्योंकि हमारा माइंड रीजनिंग पे चलता है। अगर आजकल के बच्चों को रीजनिंग ना दी जाए ना, तो बच्चे कहते हैं क्यों। हर किसी के बच्चे का सवाल होता है क्यों, मना कर दो किसी बात से, ऐसे नहीं करो, क्यों। उसको रीजन दो बेटा, अगर आप यहाँ चढ़ रहे हो तो यहाँ से गिर जाओगे, आपको चोट लग सकती है। जब तक आप रीजन नहीं दोगे, बच्चे के माइंड में क्वेश्चन ही रहेगा और वो बच्चा क्यूरियस होगा और वो बार बार वही एक्ट करेगा कि मुझे ये करना है, मुझे करना है, पता नहीं क्यों पेरेंट्स मना कर रहे हैं। सो रीजनिंग बहुत ज्यादा मैटर करती है न्यू पैटर्न्स को बिल्ड करने के लिए। सो आपने जब न्यू पैटर्न्स को बिल्ड करना है तो रीजनिंग को साथ रखना है, लॉजिक्स को साथ रखना है, ताकि आप अपने इस जनरेशनल ट्रॉमा के साइकिल को ब्रेक कर सको। नेक्स्ट पॉइंट इज फाइंड कम्युनिटी एंड विटनेस। आपने ऐसी कम्युनिटीज फाइंड करनी है, ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स फाइंड करने हैं। अगर आपको कुछ लैकिंग फील हो रही है या कहीं पे आके आप किसी पॉइंट पे आके आप स्टक हो गए, इट्स ओके। अगर आप अच्छा फील नहीं कर रहे, इट्स टोटली परफेक्टली फाइन, कोई बात नहीं। आप किसी से बात कर लो, किसी फ्रेंड से बात कर लो, किसी मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर को अप्रोच कर लो, उससे बात कर लो, इट्स टोटली फाइन। इस चीज को नॉर्मलाइज करें कि अगर हम ओके नहीं है तो इस चीज को नॉर्मलाइज करें। इट्स ओके नॉट टू बी ओके। हम हर वक्त ओके नहीं रह सकते, हम हर वक्त अपना 100% नहीं दे सकते, हम हर वक्त किसी के लिए इमोशनली फिजिकली अवेलेबल नहीं हो सकते। अपने सेल्फ को वैल्यू दें, अपने आप को वैल्यू दें। अनटिल अनलेस आप खुद को वैल्यू नहीं देते, आपको कोई भी वैल्यू नहीं देगा, आप कभी भी बाउंड्रीज नहीं सेट कर पाएंगे। आप देखें कि आप खुद की नजर में क्या है। जब आप खुद को वैल्यू देंगे, आप खुद को अच्छी नजर से देखेंगे, तो लोग भी आपको उसी नजर से देखेंगे। जब आप खुद को नेगेटिवली परसीव करेंगे या आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से ये बात करूंगा तो इसको बुरी लग जाएगी, तो वो डेफिनेटली उसको बुरी लग जाएगी। क्यों? क्योंकि हम जो सोच रहे होते हैं ना, वो हमारी रियलिटी होती है। हम उसे को ही रियलिटी बना लेते हैं। तो हमें इस रियलिटी को चेंज करने के लिए अपने माइंडसेट को चेंज करना होगा। हम जब अपने माइंडसेट को चेंज करेंगे, अपने पे काम करेंगे, तो हम अपने इस साइकिल को ब्रेक डाउन कर पाएंगे। वेदर के हम सिर्फ अपने बच्चों पे काम करते रहे, अपनी जनरेशन पे काम करते रहे, हमें खुद पे काम करना सबसे पहले बहुत जरूरी है कि हम खुद पे काम करें। हमें इस चीज को ब्रेक डाउन करना है, हमें इस पैटर्न को ब्रेक डाउन करना है। तो उस पैटर्न को पहले अपने अंदर से खत्म करें, अपने बिहेवियर को चेंज करें, क्योंकि बच्चा तो रोल मॉडल, अब मॉडल आपको आइडियलाइज करेगा ना, आप उसके लिए रोल मॉडल हो तो वो आपको आइडियलाइज करेगा। तो आप खुद को रिस्पेक्ट दो, खुद को वर्ड्स दो, राइट और रॉन्ग देखो कि क्या राइट और रॉन्ग है। इसके लिए आप अपने नर्वस सिस्टम को हील करो, ठीक है। आप अंडरस्टैंड करो कि आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, आप उन चीजों को वन बाय वन सीक्वेंसली इनको ठीक करो, और फिर उसके बाद आप इस साइकिल को ब्रेक डाउन करो, अपने बच्चों में इसको पास ऑन होने से रोको। लास्ट इज एक्सेप्ट दैट हीलिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब आप हीलिंग जर्नी की तरफ अगर जा रहे हो, अगर आप हील हो रहे हो, ये सारा कुछ देख रहे हो, आपको पता चल गया आपने क्या इनहेरिट किया, आपको पता चल गया इनहेरिटेशन का सोर्स क्या था, आपने नर्वस सिस्टम को भी हील कर लिया, आपने अपना पर्सपेक्टिव भी चेंज कर लिया, अब आपने पैटर्न्स भी बिल्ड कर लिया, आपने ऐसे सपोर्ट ग्रुप्स कम्युनिटीज भी फाइंड कर ली जहाँ से आपको हेल्प मिल सकती है। अब इसके बाद आपने इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हीलिंग एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। अगर आपने पैटर्न्स बिल्ड कर दिए और आपको अगर ये लगता है कि ये फिक्स हो गया, अब सब कुछ ओके है, तो नो, हीलिंग इज अ लाइफ लॉन्ग जर्नी।
ये आपकी सारी जिंदगी आपके साथ चलेगा। आप हर दिन कुछ नया सीखोगे, हर दिन कुछ नई चीज एक्सपीरियंस करोगे। आपको हर दफा कुछ डिफरेंट चूज करना पड़ेगा, क्योंकि ट्रॉमा एक ही फॉर्म में हमारी लाइफ में नहीं आता, ट्रॉमा डिफरेंट फॉर्म में हमारी लाइफ में आ सकता है। लाइक किसी भी मतलब अगर कोई चीज है जो हमें ट्रिगर कर रही है, वो उस फॉर्म में लाजमी नहीं है कि जो हमने विटनेस नहीं किया हुआ वो हमारी लाइफ में वैसा ही आएगा जो हमारे एंसेस्टर्स ने विटनेस किया था, जो उन्होंने देखा था। नहीं, उस डिफरेंट फॉर्म्स में आपके सामने आ सकता है। अगर आपकी मदर उस चीज को नहीं कर रही ना, तो हो सकता है आपका चचा, आपका ताया उठ के आके कहते कि तुम्हारी बेटी तो या तुम्हारा बेटा ये ऐसे क्यों कर रहा है। तो एक अलग फॉर्म है, अलग बंदा, कोई और फैमिली मेंबर आके आपको ये बात कर रहा है, बट यू हैव टू बी स्ट्रॉन्ग, ठीक है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट ऑन योर पैटर्न्स, ठीक है। तो आपने इस चीज को कंसिस्टेंटली करना है और इसको फॉलो करना है, इस चीज को एक्सेप्ट करना है कि हीलिंग जो है ना एक ऑनगोइंग प्रोसेस है, और ये बहुत स्ट्रेट पाथ नहीं है, इसमें अप एंड डाउन भी आएंगे। समटाइम्स आपको ऐसा लगेगा कि आप परफेक्टली फाइन हो, और समटाइम्स आपको फिर ऐसा लगेगा कि हाँ मैं डाउन की तरफ जा रहा हूँ या मुझे हेल्प की जरूरत है। तो जब आपको फील हो कि आपको कहीं ना कहीं किसी किसी पॉइंट पे हेल्प की जरूरत है या आप स्टक हो गए हो, दोबारा से आप हेल्प ले लो, ठीक है। तो इन इन पॉइंट्स को फॉलो करते हुए आप जनरेशनल ट्रॉमा के साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं। It means you're making progress and this is all required. Yes. It's not our duty to fix other emotions. Yes, we can support them, but everyone is responsible for themselves. Yes, yes, exactly. We are responsible for our lives. We are responsible for our happiness as well. We are in charge of our mind. We are in charge of our life. हम अपनी लाइफ ऐसे किसी को नहीं दे सकते। हम ऐसा क्यों कहते हैं कि हम दूसरे हमें खुश रखें? हमें अपने आप को खुद खुश रखना है। हम दूसरों से क्यों इस चीज की एक्सपेक्टेशन लगाते हैं कि दूसरे हमारे लाइफ के हमने अपनी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब किसी और के हैंड ओवर कर देनी है, तो ऑब्वियसली फिर हम लोग खुश नहीं रह सकते। इट्स अवर ड्यूटी। हम इस चीज की ड्यूटी लेंगे, फिर ही हम इस साइकिल को ब्रेक कर सकेंगे। So we are towards healing. So now I'm going to discuss pathways to healing from intergenerational trauma. इसमें मैं कुछ पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगी। लिसन एंड कनेक्ट विद योर बॉडी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपने सबसे पहले अंडरस्टैंड करना है कि ट्रॉमा है, ट्रॉमा एग्जिस्ट कर रहा है आपके अंदर। आपकी बॉडी में कहीं ना कहीं आपके इमोशंस ऐसे हैं जो आप अनस्टेबल हुए हुए हैं और आप बहुत ज्यादा डिस्टर्ब फील कर रहे हैं। आपने उसको अंडरस्टैंड कर लिया, आपने उसको रिकॉग्नाइज कर लिया। अब आपने ऐसे पाथवेज हैं कुछ जो आपको हील करेंगे इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा से। उसमें यह है कि आपने लिसन एंड कनेक्ट विद योर बॉडी। आपने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। आपने अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना है कि आपकी बॉडी किस वक्त आपको क्या मैसेज देती है, ऐसे क्या स्ट्रेसर हैं या ऐसे क्या सिम्टम्स हैं जो आपकी बॉडी पे आ रहे हैं। कुछ लोगों मतलब हर किसी के स्ट्रेसर्स भी वेरी करेंगे, हर किसी के सिम्टम्स भी वेरी करेंगे। किसी को मसल टेंशन रहती है, किसी को हेडेक रहती है, किसी को डाइजेस्टिव इश्यूज आ जाते हैं, कोई बिल्कुल नम हो जाता है, कोई काम नहीं कर पाता, किसी को मतलब किसी के हाथ पांव कांपने लग जाते हैं। हर किसी के जो है ना सिम्टम्स डिफरेंट होंगे। लिसन एंड कनेक्ट विद योर बॉडी। अपनी बॉडी के साथ खुद को कनेक्ट करें, अपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट का डीप कनेक्शन बिल्ड करें, क्योंकि इनका डीप कनेक्शन है बट हम इस कनेक्शन को अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। हमें अवेयरनेस नहीं है कि हमारा माइंड हमारी बॉडी को क्या कह रहा है या हमारी बॉडी हमारी माइंड को क्या कह रही है। तो इन दोनों का आपस में डीप कनेक्शन बिल्ड करें, अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करें कि आपकी बॉडी को किस वक्त किस चीज की जरूरत है, माइंड के किस एक्ट की जरूरत है, किस थिंकिंग पैटर्न की जरूरत है। जब हम अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये हमारे बिहेव को, हमारे थिंकिंग पैटर्न को, हम किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, किस तरह से चीजों को फील कर रहे हैं, ये सारा का सारा पर्सपेक्टिव हमारा चेंज हो जाएगा। Become aware of the way you view yourself and the world. आप इस चीज के बारे में भी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए कि आप किस तरह से खुद को परसीव करें और आप अपने इर्द गिर्द के लोगों को किस तरह परसीव करें। अच्छा, इंटरजेनरेशनल ट्रॉमा एक और तरीके से भी ट्रांसफर होता है, जिस तरह से हमने बाकी पॉइंट्स तो डिस्कस किया ना कि किस तरह से ट्रांसफर हो सकता है। स्टोरीज की फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकता है, मेमोरीज की फॉर्म में भी ट्रांसफर हो सकता है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अब हमने कुछ ट्रॉमा ऐसे हैं जो हमारे एंसेस्टर्स ने विटनेस किए हैं, हमने उसको विटनेस नहीं किया, हमने उसको पर्सनली एक्सपीरियंस नहीं किया, लेकिन हमारे एंसेस्टर्स हमें वो स्टोरीज इस तरह की सुनाते हैं, हमें बताते हैं कि हम जब आप लोगों की एज में थे ना, हमारे साथ ऐसा होता था, हमारे बड़े हमें इस चीज के लिए बाउंड करते थे, ये नहीं करना, इस टाइम घर से बाहर नहीं जाना, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना, इससे बात नहीं करनी, इस बारे में बात नहीं करनी, लड़के नहीं रोते। ये सारी चीजें हमारे जो एंसेस्टर्स हैं हमें उन्होंने स्टोरीज इस तरह से सुनाई है कि हमारे भी बिलीव्स उस तरह हो गए, हमारे भी बिहेवियर इस तरह हो गए, हमारे थिंकिंग पैटर्न्स भी उस तरह से बिल्ड हो गए। क्यों? क्योंकि उनका सुनाने का अंदाज ही वैसा था। वो उस तरह से, उस नजर से खुद को देखते थे और उस नजर से वो इर्द गिर्द के लोगों को देखते थे। अब जब उन्होंने वो स्टोरीज हमें सुना दी तो हमारा भी अपने बारे में व्यू वैसा बिल्ड हो गया कि अब हम भी ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि हमारी दादी ने ये बात कही थी,
अब दादी है, दादी तो कभी गलत नहीं कहती, तो हमने उस चीज को अपने ऊपर इम्पोज कर लिया कि ठीक है, हमारा भी ऐसा ही व्यू है, हम भी नहीं ऐसा करेंगे, और हम आगे अपने बच्चों को भी इस चीज के लिए रोकेंगे। और हमारा वर्ड को लेके क्या बिल्ड हो जाएगा, ऑब्वियसली जब अगर किसी बड़े ने ये बात करती, इस टाइम घर से बाहर नहीं जाना, या तुम ये बात करोगे तो लोग तुम्हें बुरा कहेंगे, तो हमारे माइंड में क्या क्वेश्चन आते हैं कि इज दिस वर्ड अ सेफ स्पेस, एम आई लवेबल, एम आई कैपेबल। तो ये सारे के सारे हमारे माइंड में क्वेश्चन आने लग जाते हैं, और हम वर्ड को भी उसी नजर से देखते हैं, इर्द गिर्द के लोगों को भी उसी नजर से देखते हैं जिस तरह की हमने उनकी स्टोरीज या उनकी मेमोरीज को सुना हुआ होता है। तो इस चीज को भी अवेयरनेस हमें होनी चाहिए हील करने के लिए, कि हम दुनिया को, खुद को किस तरह से परसीव करें। लर्न टू सिट विद योर ट्रॉमा। अब हील करने के लिए आपको अपने ट्रॉमा से निकलने के लिए ऑब्वियसली ट्रॉमा को डिस्कस करना पड़ेगा, जो एक प्लेजेंट वे तो नहीं है, प्लेजेंट इफेक्ट नहीं देगा, आपको ओवरवेलम भी करेगा, आपको डिस्ट्रेस भी करेगा, आप परेशान भी होगे, इमोशनली अनस्टेबल हो जाएगा। और समटाइम्स तो लोगों को फिजिकल सिम्टम्स भी आ जाती हैं जब वो अपने ट्रॉमा को डिस्कस करते हैं। कोई रोने लग जाता है, या कोई शिवर करने लग जाता है, किसी को स्वेटिंग शुरू हो जाती है, हर किसी मतलब कोई भी एंशियस सिम्टम आने लग जाते हैं। सो लर्न टू सिट विद ट्रॉमा। आप अपने ट्रॉमा पे बात करें, उसको अंडरस्टैंड करें। जब आप उसे डिस्कस करेंगे, आप उसके बारे में बात करेंगे, तो आप हील हो सकेंगे। जब आप उस पर बात नहीं करेंगे, आप उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे, आप उससे नहीं निकल पाएंगे। एक दफा ये अनप्लेजेंट होगा, लेकिन आप जैसे उसको डिस्कस करेंगे, उसके मतलब उसके साइकिल को ब्रेक डाउन करेंगे, तो आहिस्ता 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 उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम होता चला जाएगा। और जब उसका इफेक्ट आपकी बॉडी पे कम होगा, तो ऑब्वियसली फिर आप उस ट्रॉमा को पास ऑन करने में वो साइकिल को ब्रेक डाउन कर पाएंगे, आप साइकिल को ब्रेक कर पाएंगे। जी हिरा मुकद्दस वर्दा नईम, आप पूछ सकती हैं जो भी क्वेश्चन है आपका। अस्सलाम वालेकुम। मैम मुझे ये पूछना था, जैसे आपने जर्नलिंग बताया कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव होती है ट्रॉमा से निकलने के लिए, तो इसमें जैसे एक क्लाइंट थी, वो ये बताती कि वो जर्नलिंग नहीं कर सकती, उसे वो इनसिक्योर फील करती थी, उसे लगता था कि वो कोई ना कोई उसको पढ़ लेगा, तो उसके अल्टरनेट हम क्या कर सकते हैं? ठीक है, अगर मतलब अगर इंडिविजुअल है, उसको ऐसे लगता है कि अगर मैं कुछ लिखूंगी या मैं लिखूंगा तो कोई पढ़ लेगा, तो फिर ऑब्वियसली उसको अगर उसको इस चीज का फोबिया, इनसिक्योरिटी है, तो वो किसी और से बात कर ले। क्योंकि अगर हम उसको कहेंगे कि लिख लो, लिख तो वो लेगा, वो एक तरफ से अपना मेंटल प्रेशर रिलीज कर दिया, लेकिन दूसरी तरफ उसको उसकी टेंशन है कि कोई पढ़ ना ले, कोई पढ़ ना ले। तो एक टेंशन रिलीज होगी, और दूसरी जो उसकी है ना, तो वो बेटर एडवाइस उसके लिए ये है कि वो किसी से डिस्कस कर ले, किसी से बात कर ले, वेदर के वो लिखे। हर थेरेपी जो है वो हर किसी के लिए फिजिबल नहीं होती। राइट। वो और कोई मैम इसमें जो आपने बताया, इसमें मेडिटेशन भी आई थिंक बहुत इफ़ेक्टिव रहेगी। मेडिकेशन किस सेंस में? ये नॉट मेडिकेशन, मेडिटेशन। मेडिटेशन इट्स जी, अ टेक्निक, या इट्स अ हाँ जी, माइंडफुल टेक्निक। हाँ और जी, दूसरा इसमें जो है ना, हम पीएमआर कर सकते हैं, प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन जी। टेक्निक। पीएमआर उन इंडिविजुअल्स के लिए बहुत ज्यादा मैटर करती है, ये बहुत ज्यादा वर्क करेगी जिनको मसल टेंशन रहती है। ऑब्वियसली मैंने आपको बताया कि हर किसी को सिम्टम्स वेरी करते हैं, किसी को मसल स्ट्रेच रहते हैं लाइक दिस। अब पीएमआर जो है 16 ग्रुप ऑफ मसल्स पे कंसिस्ट करती है, हमारी बॉडी के 16 ग्रुप ऑफ मसल्स पे पीएमआर कराई जाती है। तो क्लाइंट्स को यही एडवाइस किया जाता है कि आपके या तो वो शुरुआत करें, या फिर जिस जिस बॉडी पार्ट पे ज्यादा प्रेशर फील होता है ना, वहां पे उनकी एक्सरसाइज रिपीटेडली करवाई जाती है, ताकि उनका मसल जो है ना रिलैक्स। जब उनके मसल्स रिलैक्स होंगे, तो ऑब्वियसली उनका ध्यान मसल से हटके किसी प्रोडक्टिव सोर्स की तरफ जाएगा। अदरवाइज वो फिर अपने वो मसल टेंशन को ही सोच करेंगे। ओके मैम, थैंक यू सो मच। मोस्ट वेलकम। I know it seems a small topic, but sometimes you get so attached to the person that even if everyone is telling you to make progress, we still that causes extra extremely. You can do it too. Okay. मैं बता सकती हूँ। हमारी फैमिली में ऐसा है ना कि जो जनरेशन ट्रॉमा है, मुझे है कि उनको वो कहते हैं कि आप जो छोटे होते हैं वो अपनी बात नहीं रख सकते बड़ों के सामने, मतलब वो अपनी फीलिंग्स को सुप्रेस करते रहते हैं। तो जिसकी वजह से हमारी फैमिली में बहुत ज़्यादा ये डिप्रेशन, एनजाइटी की जो डिजीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा आम हुई हैं। तो मेरे एक चाचू हैं, उन्होंने सुसाइड भी कर ली थी, तो उस वक्त मैं छोटी थी। तो अब उसके बाद मेरा भाई जो है वो इस चीज़ से गुजर आए, डिप्रेशन से। तो मैंने अपने पेरेंट्स को बताया कि जो अपने आपके इंसिस्टर्स थे
उन्होंने जो मिस्टेक्स की हैं उनको चले अवेयरनेस नहीं होगी तो आप वो चीज़ ना करें। तो बहुत ज़्यादा ये मेरे लिए चैलेंजिंग बात थी, तो लेकिन फिर भी उन पे थोड़ा असर हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने ये जो जनरेशन ट्रॉमा की जो साइकिल था वो थोड़ा मिनिमाइज किया। आपने एक अच्छा स्टेप लिया है और आप मजीद स्टेप्स ले सकती हैं। जिस तरह से आज हमने इन साइकिल ब्रेकिंग साइकिल को डिस्कस किया है, आप इसमें से कुछ हेल्प आउट ले सकती हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई हेल्प चाहिए हो तो वी ऑल आर हियर, हम एक दूसरे की हेल्प करने के लिए यहाँ पे, तो हम एक दूसरे को अप्रोच कर सकते हैं। निसारफा, इफ यू डोंट हैव एनी इशू तो आप किसी से भी बात कर सकती हैं। हम यहाँ पे सभी मेरे ख्याल से प्रोफेशनल्स हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। अगर प्रोफेशनल्स नहीं भी हैं बट हम एक दूसरे की बात को सुन सकते हैं, उसको कंसिडर कर सकते हैं, एटलीस्ट हम किसी से बात कर सकते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि हमें थेरेपी की भी जरूरत नहीं होती, हमें सिर्फ किसी ऐसे पर्सन की जरूरत होती है जो हमें सुन ले बस। जब हम किसी को हम अपना मसला सुना देते हैं ना, तो आधा मसला वहीं पे हल हो जाता है। मैम, ये लोग ऐसा समझते हैं कि जो साइकेट्रिस्ट के पास जाओ या साइकोलॉजिस्ट के पास जाओ तो ये लोग खौफ खाते हैं इस चीज़ से। ये समझते हैं कि लोग समझेंगे कि हम लोग पागल हैं या ऐसे। हालांकि मैंने इनको बताया कि जैसे बॉडी के और ऑर्गन्स होते हैं वो बीमार हो सकते हैं, इसी तरह हमारा दिमाग जो है वो भी ऐसे ही बीमार हो सकता है। उसको भी पॉजिटिव टॉक चाहिए, पॉजिटिव उसको, यानी मतलब आप जो बोलते हैं वो सोच समझ के बोलें। किसी के ऊपर क्या असर इसका पड़ता है ये हमें नहीं पता होता। तो देखें कॉन्सिक्वेंस, देखें आप लोग कितना बड़ा ट्रेजिक हुआ है हमारी फैमिली में। तो इसका हम पे बहुत ज़्यादा असर हुआ था, हम सब खौफजदा हो गए थे। तो अभी भी ये लोग इनको अगर मेडिसिन कहो तो इन लोगों को समझ नहीं आती इतनी ज़्यादा, तो बहुत ज़्यादा इन लोगों को फोर्स करना पड़ता है, तो तब ये लोग लेकर आते हैं। तो ये ऑब्वियसली एक माइंडसेट बिल्ड हुआ हुआ है ना, ये प्रीवियस एंसेस्टर से आपकी फैमिली का एक माइंडसेट बिल्ड हुआ हुआ है कि इस बारे में बात नहीं करनी, अपने इमोशंस को डिस्क्लोज नहीं करना, इसके लिए हेल्प नहीं लेनी, इससे रिलेटेड मेडिकेशन नहीं लेनी, जो चल रहा है जैसे चल रहा है वो चलने दे रहे हैं। बट यू हैव टू ब्रेक दैट साइकिल, ठीक है? तो आप कोशिश करते रहें, इंशाल्लाह जिस तरह आप थोड़ा बहुत चेंज लेके आई हैं, आप ड्रामेटिक चेंज भी ला सकती हैं। यू हैव पावर, तो आप इस चीज को करें, इंशाल्लाह यू विल डू इट। थैंक यू। You're most welcome. So we are about to wind up. In last, मैं एक closing reflection exercise करवाना चाहूंगी। जो लोग भी, जितने भी हैं हम सब यहाँ पे, take a moment to close your eyes if comfortable. Please take a moment to close your eyes if comfortable. Take a deep breath. Take a deep breath and sit with stillness. Let your thoughts settle. Let your thoughts settle. Bring your awareness to the present moment. Forget about all the traumas, all anxious thoughts related to past, related to future. Just focus on the present moment. Take a deep breath and gently say to yourself, I am allowed to feel and heal. I am allowed to feel and heal. I carry the strength of my ancestors, not only their pain. I carry the strength of my ancestors, not only their pain. It's okay to choose a different path. It's completely okay if I can choose a different path. I am the dream of those who came before me. I am the dream of those who came before me. Be comfortable with yourself. Don't be hard to yourself. Just take your time. Create a safe space for you. Be comfortable. Take a deep breath and open your eyes. Take a deep breath and open your eyes. Are you there? Is everybody there? Yes. Yes. Perfectly fine. What is not transformed is transmuted. A common misconception is if I did not experience the trauma firsthand, it should not affect.
ट्रॉमा की एक कॉमन मिसकंसेप्शन है कि लोग कहते हैं कि अगर ट्रॉमा हमने फर्स्ट हैंड विटनेस नहीं किया या हमने उसको फेस नहीं किया, कन्फ्रंट नहीं किया, तो हमें अफेक्ट नहीं करेगा, जबकि ऐसा नहीं है। ट्रॉमा जनरेशंस में आता है और हम लोग सब उसको कन्फ्रंट भी करते हैं, फेस भी करते हैं और उसकी अजियत से भी गुजरते हैं। बट नाउ फ्रॉम टुडे वी हैव टू ब्रेक द साइकिल ऑफ जनरेशनल ट्रॉमा, इंशाल्लाह। This is all for today. Any question? अस्सलाम वालेकुम कायनात। Assalam. जी कायनात, मैं ये पूछना चाह रही थी कि और बताना भी चाह रही थी कि यूजुअली ये होता है कि कोई बंदा स्ट्रेस में होता है तो वो गलत इंडिविजुअल से जो है मदद मांग लेता है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कि मदद हम लोग जिससे मांग रहे हैं, हमें उस बंदे को भी देखना है कि वो कौन है, समझ रहा है हमें या नहीं समझ रहा। एग्जैक्टली ये भी वो बहुत बहुत मैटर करता है। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अंडरस्टैंड करना है कि आप किससे हेल्प ले रहे हैं, आपकी उसके साथ रेपो बिल्ड हुई भी है या नहीं हुई भी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते। सो ये तो आपका पर्सनल है कि आपका उसके साथ रिलेशन कैसा है, वेदर वो आपका भाई है, वेदर वो आपका फ्रेंड है, वेदर वो कोई भी है। तो ये आपको इस चीज को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि आप जिससे हेल्प ले रहे हो वो आपका उसके साथ माइंडसेट मैच करता है या नहीं करता, क्योंकि माइंडसेट मैच करना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर हम इस साइकिल को ब्रेक करना चाहते हैं ना, तो इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आएगा कि आप उन लोगों से हेल्प ले सकते हो जिनका माइंडसेट आपसे मैच करता है। अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि आपको जनरेशनल ट्रॉमा के साइकिल को ब्रेक करना है और आप किसी ऐसे बंदे से बात कर रहे हो जिसके बहुत ज्यादा रिजिड बिलीव्स हैं, अपने इंसेस्टर से उसने उसको लिया हुआ है, जनरेशन में उसके आए हुए हैं, तो उसके बहुत रिजिड बिलीफ है और आप उससे हेल्प लेने चले गए, तो ऑब्वियसली वो तो आपके जो नर्वस सिस्टम हील हुआ होगा वो तो आपको भी डिस्टर्ब करेगा। सो डोंट गो टू दैट, ठीक है। आप किसी ऐसे बंदे से ही बात करो या किसी ऐसी बंदी से ही बात करो जिसके साथ आपका माइंडसेट मैच करता हो। जब आपका माइंडसेट मैच करेगा तो आपको अच्छी एडवाइस करेगा, आप उसकी बात को अंडरस्टैंड करोगे, वो आपकी बात को अंडरस्टैंड करेगा। तो ये बहुत ज्यादा मैटर करता है कि आप किससे हेल्प के लिए जा रहे हो, किसके पास हेल्प के लिए जा रहे हो। सो अगर आपके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है कि जिसका आपको नहीं पता कि इसका माइंडसेट कैसा है, मैं इससे बात करूं या ना करूं, तो डोंट टॉक। आप किसी प्रोफेशनल से बात कर लो। अगर आपको किसी बारे में एडवाइस चाहिए या आप कहीं किसी पॉइंट पे आके स्टक हो गए हो, तो आप ये इस चीज का रिस्क ना लो, क्योंकि अगर आपने रिस्क ले लिया और आपका माइंडसेट मैच नहीं करता तो वो आप भी वहां पे आके डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। सो अगर वी आर अबाउट टू वाइंड अप, अगर किसी और का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। आई विल श्योरली आंसर योर क्वेश्चन इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। Thank you so much, Kainat. You're most welcome. Do we have someone who wants to ask a question? Yes, I want to ask something. Yeah, you can go ahead. But make it a bit brief. अच्छा, क्या ये तो टॉपिक जनरेशनल ट्रॉमा पे हो रहा है, मुझे कुछ रिलेशनशिप के हिसाब से पूछना था, उसका एस्पेक्ट यहाँ पे होगा? जी आप पूछिए क्वेश्चन। जैसे पता नहीं इसका यहाँ पे लिंक बनता है कि नहीं, आप मुझे खुद बता दें। जो जैसे आपने किसी से किसी कहीं पे जाकर रिश्ता देखना है, तो कुछ बातें आप शायद आपके पेरेंट्स का आपने माहौल देखा हुआ है या उनकी वजह से आप कुछ चीज़ों से इफेक्ट हो रही हैं, तो आपसे डिसीजन नहीं लिया जा रहा बिकॉज ऑफ दैट। क्या ये फिक्स है? जी रेलिवेंट तो है, बट आई थिंक यू आर नॉट क्लियर अबाउट योर क्वेश्चन, सो टेक योर टाइम। आप इस क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करें कि आप क्या पूछना चाह रही हैं। हाँ, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डिस्टर्ब हो जाती है अगर हमारी पेरेंटिंग स्टाइल हमारा मैटर करता है कि हमारे पेरेंट्स ने हमें हमारे पेरेंट्स कौन सा स्टाइल अडॉप्ट किया है, ठीक है। एग्रेसिव स्टाइल है उनका या अवॉइडेंट स्टाइल है उनका, ठीक है, या सिक्योर अटैचमेंट स्टाइल उनका, कौन सा अटैचमेंट स्टाइल है जो जिसके साथ आप लिंक्ड हैं, तो फिर ये वेरी करता है कि आपकी डिसीजन मेकिंग एबिलिटी किस वजह से डिस्टर्ब हुई हुई है। ठीक है, can I ask my question later in the group? Yes, sure. Yes, sure. I will answer. Okay, thank you so much, everyone, and thank you so much, Ms. Kainat. It was a wonderful session and a very informative one. Now, I would request Ms. Safra. She wants to
speak for a while. Thank you so much, Kainat, for joining us today and for sharing such meaningful insights. I believe this is a topic that all of us wanted to talk about, and it's something that we all feel. We all feel the pain of trauma, but we are not willing to speak about it. So I believe today you provided a safe space for all of us to share our own insights about trauma, our own personal conflicts that we have been facing for so long. I'm so honored to have you here with us. And I also want to say that to all of the participants, thank you so much for engaging, for trusting us, and for being open about your issues. I just want to say that healing doesn't begin when the pain ends. It begins the moment when we feel safe enough to speak the truth about it. And I believe that a lot of people felt that safe space today. And here's to healing, here's to more conversation about it. And thank you, Kainat, again for being with us and for all the participants who showed up with their open hearts. We are going to wind it up because we're running out of time. And I just want to say that please give your feedback and any questions that you have on the WhatsApp group. And thank you so much. Allah Hafiz. Thank you so much, everyone, and Allah Hafiz. Allah Hafiz.